नए सिरे से हिसाब सारे. We're just talking about things that annoy, amaze, excite, or bore us. We are crows from Karachi, dropping crap at your feet. It's up to you to pick it up. Or not. Episode 6 Bread and Butter. Interestingly, we dressed like Kavvas today. I love what you guys are wearing, by the way. If Black's my favorite if I, color. If I could, I would wear either black or white. You can. What's stopping you? I mean, this is the land of cotton. You can just, and all kinds of cotton. Of course, Bachpan Bhar, when my cousin was here, we were talking about how I used to love gray and I always wanted to wear gray clothes. And people would insist on buying me peach and pink and pale blue. And they'd be like, why doesn't Sabah wear more colorful clothes? And they just try to dress me up in that all the time. I don't know why do people associate gray color with oldies. Like I want to tell you, I've been called Amir Bewa. Oh, wow. Amir Bewa. That's weird. I want to understand this whole label with my being Amir. And Allah Ta'ala not hopping onto that bandwagon and giving me the money so that I am actually. Well, darling, when you're wearing block prints and, khadi and expensive clothes, of course, khadi is middle of the line. It's no longer expensive. The expensive ones are beyond my understanding, at least. But so we were going to talk about local businesses, right? One of the things that obviously the thing that Pakistan has been very good at has been clothes. Yes. That's like and design. Business. Yeah. Clothes and fashion. design. Fashion. Yeah. So today we are particularly discussing about buying local stuff. About local businesses, supporting local businesses and why we should support local businesses. I mean, when we talk about boycotts and boycotting international brands and moving to Pakistani brands, obviously clothes aren't something that we need to worry about because everyone is wearing local fabrics. It's rare for them not to be wearing local. But when it comes to other things, when it comes to daily life things, then it's like, especially luxury item, actually, I think that it's luxury items that for some reason our country can't seem to give up at all. I mean, Coke and Pepsi alone probably subsidize all of the settlers in the West Bank, and we help with that significantly, unfortunately. I was reading an article yesterday, and what they called our economy was elite-driven consumption economy. Oh wow, yes, that's true. Yeah, because this is an elite-driven consumption economy because the elite cannot seem to find a way to not feed their dogs imported food and to not use imported stuff, imported cars, perfumes, everything. While she's getting rid of this, can we have a monopoly day one day? Oh God, Monopoly? I cannot. Danielle tells me that all these Gen Z kids spends their day in these, and I could not spend 10 minutes. It's so horrible. Did you hear what I just said? No, yeah, what? Can we have a monopoly day one day? I am dying to play monopoly. Really? Yeah. Sure. Another And I con want to. of turning off the fan is कि मैंने देखा कि बाकी सारी वीडियोस में सीने ही पोंछती रहती हूँ. So we were talking about the economy, and you read something about But this, I think our economy being in, yeah. I think before we get into the details of our economy, let's just first explore why we should boycott. Like, I read a bit about the BDS movement, and I found certain aspect of it which I think are not as pretty common. हम BDS की जब बात करते हैं तो हम B को तो हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन D और S के बारे में हम उस तरह नहीं जानते, which I think is very important to talk about. It is very related to our subject of the matter of the day. मुझे इस बात को सुन के हम बाइकॉट
कि जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि बायकॉट का मतलब ये है कि आप हर उस ऐसी एंटिटी से डिसएंगेज करें, चाहे वो कोई कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो खुद स्टेट ऑफ इज़राइल हो, उनकी उनकी कंपनीज़ हो या कोई ऐसी कॉर्पोरेशन हो जो स्टेट ऑफ इज़राइल को सपोर्ट करती हो, आप उनसे डिसएंगेज करें। अब चाहे वो इकोनॉमिक बिज़नेस रिलेटेड हो, एकेडमिक रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, किसी भी कैपेसिटी में अगर आप किसी एक ऐसी कल्चर, एंटिटी से engage एंटरटेनमेंट, बिल्कुल करते हैं जो कि सपोर्ट करती है खुद स्टेट ऑफ इज़राइल को या उनकी उन पॉलिसीज़ को जिसमें वो पैलेस्टीनियन के राइट्स को ख़त्म करते हैं, तो इस इस सिचुएशन को आप बायकॉट करते हैं कहते हैं। बिल्कुल लेकिन द डी इन बीडीएस इज़ डाइवेस्टमेंट एंड आई डाइवेस्ट। फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि डाइवेस्टमेंट का मतलब है कि आप हर उस जगह पैसा लगाने से पीछे हट जाएँ, जो कि इज़राइल को किसी भी कैपेसिटी में सपोर्ट करता है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक्स में डील करते हैं और ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में डील कराते हैं। डू पीपल रियलाइज़ कि अगर वो एप्पल के स्टॉक्स खरीद रहे हैं या इंटेल के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो दैट इज़ आल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। यस या खरीदवा रहे हैं, अगर आप एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जो फैसिलिटेट कर रही है इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में डील करने को, तो वो भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अब आपको सोचना चाहिए। आप नहीं अपने पैसे लगा सकते ऐसी कंपनीज़ में जो पूरी तरह फ़लस्तीनियों के ऑपरेशन I में mean, इसराइल के Palestine साथ को खत्म कर रहा है. I mean, बिल्कुल। I don't know if you guys follow any of the Palestinian channels that the Electronic Intifada is something that I've been following for decades now. Before they started YouTube, they're an online magazine, and they have been documenting the kind of divestment that's been happening around the world. और ये बहुत सालों से हो रहा है, बहुत छोटे पैमाने पे हो रहा था और अब थोड़ा सा बढ़ने लगा है ऑब्वियसली अब बहुत ही ज्यादा. But companies, it's not just companies, organizations, communities, cities invest money in different companies, and those companies then invest in other companies. Up to itne sare layers ho gaye na, because you have one giant umbrella company that has 17 other companies, and those companies have other एब्सोल्युटली। companies, right? So when you drill down to it, it really requires a lot of thought. But when you drill down to it, it turns out that there's, for example, the city of Iowa has just divested from all investments into Israel. So anything that, for example, suppose that they invest part of their money in Caterpillar. Caterpillar creates bulldozers. Bulldozers were used to, knock down यस। Palestinian homes. So they divested from Caterpillar. Now to Volvo bhi aa gaya. Volvo needs to be divested from. So don't. The point would be that not just as individuals, but as communities, you must get together and you must एब्सोल्युटली। divest from all these organizations. And And I'd like to mention one more thing here before Sabahat moves on, that a lot of people think that the BDS movement is just for Palestine. One needs to understand that that Middle East and the countries that have kind of come up and they are supporting Palestine, they too are being targeted with the money that you put into this movement. So it's not just about Palestine, because a lot of people turn around and say, "Oh, ये सिर्फ फलस्तीन के लिए हम कर रहे हैं, ये सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं हो रहा है." क्योंकि इन जनरल जहाँ जहाँ पे खैर हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वगैरह की कि अगर आप वो लोग जो कि नहीं सोचना चाहते ऑन दी humanitarian side of this, they also need to understand the economic side of it. So we'll continue Sabahat and we'll एंड move on. द थिंग अबाउट बायकॉट इज लोगों को समझते हैं कि कोई फायदा नहीं है। सी बायकॉट के ना 2 लेयर्स हैं। देयर इज इकोनॉमिक एंड देयर इज आल्सो रेपुटेशन। क्योंकि अ लॉट ऑफ दीस कॉर्पोरेशंस फॉर देम देयर रेपुटेशन इज सुप्रीमली इम्पोर्टेंट। इसीलिए yeah, आप देखते हैं कि दिस इज वेरी फनी बट दिस इज समथिंग वी एक्सपीरियंस कि जैसे ये शुरू हुआ सारा जेनोसाइड सिचुएशन, अचानक से हम ऑनलाइन कुछ देख रहे थे और हमारे पास नेस्ले के ऐड आने लगे जिसमें जितने वर्कर्स उन्होंने दिखाए वो इतनी लंबी-लंबी दाढ़ियों वाले। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि उनके लिए अपनी रेपुटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और वो अपने आप को एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं। व्हाट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट बिहाइंड शोइंग पीपल हू हैव अ सर्टेन वे ऑफ लुकिंग, ताकि वो आपके ज़हन में एक बात बिठा सकें कि हम इस सेगमेंट जैसे ही हैं।
KFC की नई कैंपेन जो है ना, साउथ Hmm. पंजाब में पंजाबी बोलते हुए आ गई है. Absolutely. So reputation to these people, how they look is matters. everything. तो Yes. अगर आप बायकॉट कर रहे हैं, तो अगर आप फाइनेंशियल उनको नुकसान नहीं भी पहुंचा रहे, लेकिन अगर आपके बायकॉट से रेप्यूटेशन खराब हो रही है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट विन. That is a great win. And I think the problem with boycott in general, especially amongst Pakistan, is the kind of reaction that they come back with कि ये तो local companies हैं, हमारे local लोग हैं, इनकी नौकरियां चली जाएंगी, ये होगा. But और and the other thing that everyone says all the time is मैं अकेला अगर boycott करूं तो क्या फर्क पड़ेगा. But I mean, if every single individual thinks that, oh, I'm an individual and my boycott will do nothing, then obviously it's going to do nothing. The whole point would be for every individual to think that it doesn't matter कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं बॉयकॉट करूंगा. क्योंकि अगर हर इंडिविजुअल ये सोचना शुरू कर दे तो फिर सब लोग बॉयकॉट कर देंगे. और हम लोग बहुत Okay, सारी I'll give you an example. I'll give you an example. What the power of one boycott? Let's unpack that example. Okay, every person has a circle of influence. That circle of influence could be my parents. As simple as just two people, my parents. That circle of influence could be two people at workplace that I spend my day with. It could be friends like we are. ठीक है. और इसमें से let's say for example I'm one of those people who does not believe in the boycott. क्योंकि मैं वो एक इंडिविजुअल हूँ जो ये कह रही है कि इससे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है ना. लेकिन मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि अगर आज मैं बॉयकॉट कर रही हूँ तो मेरे घर के अंदर तो इन्फ्लुएंस करना कोई मुश्किल काम मेरे लिए नहीं है. ठीक है ना. क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनसे अगर मैं ये कह देती हूँ मैं ये नहीं करूंगी, वो क्या करेंगे? खैर they've been very sweet, you know, they would now turn around and say कि नहीं हमारी बेटी ये नहीं खाती है इसलिए हम ये नहीं खाएंगे या ये नहीं मंगवाएंगे. ठीक है. But let's say even if they were not that sort and you know they wanted to sit here and argue about this, तब भी उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है that I'm uncomfortable with stuff on my table because it's making me uncomfortable and I am emotionally attached to that situation. ठीक है. तो ये तो आपकी वो लिंक आ गई. यही सिचुएशन आपके पास खड़ी हो जाती है ऑफिस के अंदर कि अगर आप ऑफिस में इनसे कह दें कि देखिए आई एम सॉरी मगर मैं बॉयकॉट कर रही हूँ. ठीक है. मेरे ऑफिस में एक बच्चा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्वाफीना का पानी आता है तो और उस पानी पे वो पैसे नहीं देगा, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको मसला है इस बात से तो वो अपने साथ रोज घर से पाकोला की एक बॉटल लेके आता है पानी. Brilliant. This is brilliant. ठीक है. और मैं आज तक अभी तक मैं वहां पे नहीं पहुंच सकी हूँ क्योंकि मैं वो पानी पी गई हूँ जो वहां पे है मौजूद, मगर उसका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस इस तरह का है कि उसको देख के मैं 2 सेकंड को रुकती हूँ. हाँ, मगर ये जरूर दैट ईच टाइम वी आर गोइंग आउट पीपल नो इट फॉर अ फैक्ट कि मैं KFC नहीं जाऊंगी, मैं मैकडॉनल्ड्स नहीं जाऊंगी. ठीक है ना. तो वो ना चाहते हुए वो एक मील है जो कि उस जगह वहां पैसे नहीं जाएंगे. एंड देन विद फ्रेंड्स it's the same thing. If you remember when we had gone out for our roast, और वो हमने वहां पे हंगामा शुरू किया कि भाई हमारे आपके पास यहाँ पे लोकल ड्रिंक्स क्यों नहीं है. ठीक है ना. पाकोला क्यों नहीं है या ये क्यों नहीं है. और मजे की बात ये है कि क्योंकि हम अदरवाइज बदतमीज लोग नहीं थे, उस बच्चे ने जाकर के पाकोला ढूंढ के लाकर उसने हमें दी कहीं से क्योंकि Absolutely. हम कोक पेप्सी पीने को तैयार नहीं He थे. went to an international chain and they did not have local drinks. The waiter facilitated. उसने किसी को भेजा बाहर से मंगवाया और हमें local drink मंगवा के दी. People have compassion here. और see, you need to push a bit. You need Yes. to. हम लोग ये करते कि we do not push for it. You need to push a, a bit. और फिर आप देखते हैं कि people facilitate things for you. आपको मांगना पड़ेगा. अगर आप ये चाहेंगे कि आपकी टेबल पे लाके कोई रख दे, ऐसा कुछ होगा नहीं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा अभी 14 अगस्त गुजरी है तो पेप्सी ने अपनी पूरी मार्केटिंग ग्रीन करी हुई थी एंड माय किड हु इज 6 इयर्स ओल्ड वाज लाइक मामा ये पेप्सी पाकिस्तान की हो गई. उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि ये इसराइल को पैसे देते हैं एंड नाउ इट्स ग्रीन ऑल ऑफ अ सडन. सो एवरी टाइम ही वुड स्टेप आउट ही वुड आस्क मी मामा ये क्या सही हो गए, ये पाकिस्तान के हो गए. सी as an adult you do not feel these things, but when you see things from a child's perspective, marketing is so important and how wickedly they use it to Yes.
अभी दिल दिल पाकिस्तान इन्होंने लॉन्च किया है, एंड आई वाज सो मैड अबाउट इट दैट दिल दिल पाकिस्तान इज Vital Sign, Junaid Jamshed, and these Yeah, but it's foreign been with Pepsi corporations. for years. Yeah, but even if they have, say, they would go to any mile to appear local, which Hmm. they are not. Yes. और एक चीज और जो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए वो ये है कि एक मेरे पास कॉन्वर्जेशन और आई कि जी ये अचानक अभी से आपको क्या हुआ है। मतलब फलस्तीन का मसला तो पता नहीं कितने अरसे से जाएगा और ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन है करने के लिए क्योंकि फलस्तीन का मसला ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, फलस्तीन का मसला बहुत अरसे से था और एंड आई एम ग्रेटफुल टू द सोशल मीडिया। आई एम ग्रेटफुल क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं ना आपकी टेक्नोलॉजी के, तो उनमें से एक फायदा यही था कि आपके पास जो करंट आपकी जनरेशन है जिसको मैं वाकई सलाम पेश करना चाहती हूँ कि ये वाली जो बेदारी थी कि हमारे अंदर नहीं थी। इन ऑल ऑनेस्टी मैंने 2 साल पहले तक कोक पेप्सी पी है। मैंने लड़ाई की है कि आई प्रेफर कोक ओवर पेप्सी और दिस ओवर दैट एंड आई वुड यूज अ सर्टेन ब्रांड दिस दैट व्हाटएवर। ठीक है, क्या फलस्तीन उससे पहले नहीं था। लेकिन जो आपकी सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से इन्होंने पहला काम ये किया कि इन्होंने मीडिया हाउसेज उड़ाना शुरू किए क्योंकि वो उनको ये बात समझ आ गई है कि देखिए मीडिया हाउसेज अगर आप नहीं उड़ाएंगे और न्यूज अगर बाहर जाती है तो मेरे आपके जैसे आम लोग जो अभी तक सोए हुए थे, ठीक है ना, जिनको एहसास नहीं हो रहा था कि वहां हो क्या रहा है, उनको एहसास होगा कि उनका अपना इन्फ्लुएंस क्या करता है। और अगर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबाहत की बात पे वापस आना चाहूंगी, तो वो KFC या वो मैकडॉनल्ड्स जिनके मील्स जो थे अब 1,500-2,000 के करीब जाने लग गए थे इस बॉयकॉट के बाद, जो थोड़ा बहुत भी हम कर सके हैं, उनकी प्राइसेस आपकी अब लोकल मील्स से सस्ते हुए हैं क्योंकि लेकिन उनका बिजनेस राहिला, इम्पैक्ट मैं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो टर्की से स्टारबक्स खत्म हुआ, हो सकता है वो इसकी वजह से ना हुआ हो, मगर ओवरऑल रीजन के अंदर बॉयकॉट से और ज्यादा इन्फ्लुएंस तो खैर वेस्ट पे हुआ। हमारे यहाँ पे इतना भी नहीं हुआ लेकिन फर्क पड़ा। लेकिन सूरत मैं लैंड आपको आप एक बात बताइए। हमारे बताऊं पास राहिला, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि द बाइकॉट्स आर रिग्रेसिंग। परसों मैंने KFC पे जितनी लंबी लाइन देखी है, ये मैंने पिछले 3 साल में नहीं देखी थी। और ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आपका मीडिया उस तरह, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह फलस्तीन के लोगों के हालात रिपोर्ट नहीं करता जैसे नहीं करने पता। चाहिए। मैंने WHO की रिपोर्ट पढ़ी है। मई मई 2025 में WHO की रिपोर्ट ये है कि हमारे पास सिर्फ 500 मैल नरिश्ड बच्चों का ग़िज़ाई का सामान मौजूद है उनको नरिश करने का। 500 बच्चे पूरे गज़ा में, और मई में, यानी कि वो अब ख़त्म हो चुका होगा। रिपोर्ट ये थी कि पिछले हफ़्ते में 1000 लोग मरे हैं खाना लेने के अमल के दौरान, क्योंकि वहाँ पे वो फायर करते हैं। तो ये नंबर्स, इन पे इस तरह बात नहीं होती। अगर ये आवाज़ बार-बार कानों में पड़े, लोग इस बारे में बात करें। परसों मैंने देखा रीमा पेप्सी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही है। कोई ईमान नहीं है इन लोगों का, कोई नहीं। इंसानियत नहीं है। राइट, लेफ्ट, सेंटर में सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को, ये लोग लगे हुए हैं पैसा कमाने में, और इनको 1 रुपए की शर्म नहीं है कि जिन कंपनीज को दुनिया बायकॉट कर रही है, ये उसके साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। Yeah. और ये, एंड देयर इज समथिंग दैट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ओनली रिसेंटली रियलाइज्ड दिस, क्योंकि मैं ना इकोनॉमी की जब बात आती है, आई एम अ परफेक्ट लेमैन। माय सब्जेक्ट्स हैव ऑलवेज बीन साइंस एंड लैंग्वेज, सो आई एम अ लेमैन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। और मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि हमने 4 दिन पहले यौम आज़ादी तो मनाया, मगर आपकी इकोनॉमी आज़ाद कहीं से भी नहीं है। नहीं है। आप और इस पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक सूरत, क्योंकि सोवरेनिटी तो यस आई एग्री, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल भी आप इकोनॉमिकली आज़ाद नहीं हैं, आप एक जेल में बैठे हुए हैं और आपका पैसा बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। इवन टू अच्छा पैसा इसमें हमारे हाथ में हाँ नहीं है, लेकिन हम लोग आई मीन that's like at a higher level. I think that if we discuss right now the the importance of boycotting and why boycotting will actually do more for us than we realize. It's not कि फ़लस्तीन को
फायदा पहुंचेगा, जो उनको डेफिनेटली पहुंचेगा, और हमें इसको रिट्रेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक हम लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं इतना सोशल मीडिया पे। मैं भी जब देखती हूँ, अब तो मैं नहीं कर पाती हूँ। I used to spend at least 10, 15 minutes on Twitter scrolling through, making sure that I retweeted, making sure that I wouldn't get into arguments, because there's no point in talking to Hasbara trolls, or to trolls in general. They're just there to, waste your time, but to amplify other voices. But it's getting harder and harder for me to do, simply because it's been too long. It's been 2 years. And uh, on the one hand, we're completely desensitized, or ab dekh ke we just scroll past it. But also there's fatigue that's setting in. Na? हम लोग Absolutely. कितना करेंगे, कितना इसको amplify करेंगे. But boycott is something that you can do without, um, which should be something that you are putting in a consistent effort to do. And it annoys me when people don't. It annoys me when my cousins say कि हमारे बच्चे देखें कोक की आदी हो गए हैं, और उसके बगैर उनको कुछ मजा नहीं आता, तो कोक ही लेना पड़ता है। I'm sorry, कोक कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बगैर आप लोग मर जाएंगे। आप उसको बदल सकते हैं। कोलानेक्स बुरा नहीं है। अगर आप कोलानेक्स को फीडबैक नहीं देंगे तो वो बेहतर किस तरह होगा। हमारी लोकल कंपनी है, उसका बहुत फायदा है कि आपने अपनी लोकल कंपनी को आगे बढ़ाया है, क्योंकि वो पैसे हमारे पास ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं। और ये चीज So, समझ। Sabhat, so एक और for the audiences, just very quickly, although it's not as simple as what I'm going to say right now, but just to give you an insight, कि देखें, अगर आप अपने मुल्क को, अपनी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को एक बिजनेस की तरह समझते हैं, तो इस बात को समझें कि आप जितना बेचेंगे और उससे आप पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। मुल्क से बाहर आप जितना बेचते हैं उससे आप पैसे कमाते हैं, और जो आप अंदरूने मुल्क चीजें बाहर से लाते हैं उसमें आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं, ठीक है। इस मुल्क को जब भी आपके पास आपकी जो आमदन है, यानी कि जो आपने कमाया, उससे ज्यादा आपने खर्चा, तो आपका मुल्क जो है वो डेफिसिट में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ इसेंशियल्स हैं जिसके ऊपर आप चाहें या ना चाहें आप फंस जाते हैं, जैसे कि तेल है, पेट्रोल का इस्तेमाल है, पेट्रोल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। और आप इस बात को समझें कि जो मुल्क की, आपकी दुनिया की इस वक्त जो इकोनॉमी चल रही है, अभी चेंजेस की तरफ देखा जा रहा है, मगर जो इकोनॉमी चल रही है वो यूएस डॉलर पे चल रही है। तो जब जब आपका मुल्क डेफिसिट में जाएगा और वो कर्जे लेगा, जिसकी बात करें तो लैन इससे पहले कर रही थी, तो आपकी जो पाकिस्तानी रुपए की कदर है वो गिरती है। तो आप क्योंकि पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं, तो डॉलर $100 अपनी जगह रहेगा, लेकिन कमा आप रहे हैं रुपए के अंदर मुल्क में, ठीक है ना। आपकी इकोनॉमी रुपए में चल रही है, तो जब आपको पेमेंट्स करनी होती है और आपका डेफिसिट इतना बढ़ गया कि जी आपके कर्जों की वजह से आपकी रुपए की कदर नीचे हुई, क्योंकि आपका बिजनेस यहाँ पे इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो इकोनॉमिक स्लम्प आया आपके पास, तो वो डॉलर जो जिसपे आपने कर्जा समझे ₹200 में लिया था, और आज अगर आपको ₹280 के ऊपर उस कर्जे को वापस करना है, तो और उसके ऊपर सूद भी है, तो आप इस मुश्किल से निकल नहीं सकेंगे। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, जिसको अगर हम समझें कि हम क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। और एक स्टडी मैंने और की कि सब कॉन्टिनेंट में जो हम 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, जिन्होंने लगभग आसपास ही अपनी इंडिपेंडेंस आई, बांग्लादेश लेटर ऑन गया 71 के बाद, और उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, दैट्स समथिंग दैट वी विल स्पीक अबाउट लेटर ऑन इन दिस थिंग। लेकिन इस बात को पहले आप समझें कि आपका जो एक्शन है वो एक्शन सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं है, आपका ये एक्शन आपको भी इम्पैक्ट पाकिस्तान के करता लिए। है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए कि अगर आपको जेनोसाइड से मसला भी है ना, तो डोंट मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉल इनटू स्लैक्टिविज्म। स्लैक्टिविज्म क्या है कि आप सिर्फ ऑनलाइन कन्वीनियंटली बात करते हैं, आप रियल लाइफ एक्शंस में कुछ भी कुछ नहीं नहीं कर रहे करते हैं। हैं। मतलब ये जब मैं फलस्तीन के बारे में बहुत ज्यादा बोलती थी सोशल मीडिया पे, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपनी एनर्जीज एक ऐसी जगह लगा रही हूँ जिसका ऑनलाइन वर्ल्ड में तो इफेक्ट है, मगर शायद रियल वर्ल्ड में ऑफलाइन रियल उसका वर्ल्ड में इतना कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं आ रहा। और जेनोसाइड जो हो रहा है ना, वो रियल टाइम रियल वर्ल्ड में हो रहा है।
वो ऑनलाइन नहीं हो रहा। Right. तो मेक श्योर यू डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप वेयर आपकी सारी एफर्ट सिर्फ ऑनलाइन है। आप पोस्ट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आई नो उसका इम्पैक्ट है, वो बिल्कुल फ्रूटलेस नहीं है, लेकिन जब आप बायकॉट करते हैं ना, फिजिकल चीजों को खरीदने से आप इनकार करते हैं, तो आप रियल लाइफ वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आप Exactly. चाहे 4 आने का करें या 10 पैसे का करें, आपका इस रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं। तो ये जो सारी राहिला ने सारी बात समझाई है कि इकोनॉमी ये सब रियल वर्ल्ड चीजें हैं, तो ये बहुत ज्यादा मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि ऑनलाइन, और ये फोकस भी मुझे नजर आता है कि आप ऑनलाइन बात करें, ऑनलाइन बात करें, ऑनलाइन बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर आपकी रियल वर्ल्ड रियल लाइफ में नहीं आ रहा, आप बायकॉट नहीं कर रहे, आप डाइवर्स नहीं कर रहे। और एक चीज और राहिला, आई थिंक हम थोड़ा सा पीछे जाके एक सैंक्शंस पे भी बात कर ले, ताकि फिर उसके बाद हम अपनी लोकल इकोनॉमी पे आए। क्योंकि मैं अब ईरान के ऊपर बात करने लगी थी, मुझे मेरे जहन में ये बात उस वक्त इसलिए आई क्योंकि एक पॉइंट आया था जब इन्होंने कहा था कि सीज फायर हो गए, जो फिर रहा नहीं क्योंकि उसके बाद दे कंटिन्यूड। तो उस सीज फायर सिचुएशन के बाद ऑफिस में एक बच्चे ने मुझसे कहा कि अब आप KFC क्यों नहीं खा गई, अब तो सीज फायर हो गया। एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट सबाहत, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैलेस्टाइन. It is not about this current movement that the resistance is putting up. It is about anybody, and it's not just Muslims. It's anybody who's being oppressed right now economically, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो इस वक्त आपके पास फलस्तीन में हो, कश्मीर में हो, या किसी भी और जगह पे हो जहां पे Anywhere इकोनॉमी in का the global इस्तेमाल south. करते हुए Yeah. कहीं पे भी आप अगर इकोनॉमी का इस्तेमाल करके फंड कर रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि देखिए जो ये जंगें कर रहे हैं ये मुफ्त में तो नहीं हो रही, ऐसे पैसे लगते हैं ना, और पैसा बेतहाशा है। पैसा बेतहाशा इसलिए है क्योंकि अगर आप गोलियां जो कि महंगी नहीं होती, मतलब सस्ती नहीं होती हैं, उसको अगर स्नाइपर्स आपके मजाक मजाक में बच्चों को मारने के लिए जस्ट टू चेक, क्योंकि ये अभी मेहदी हसन की एक मैं पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें उसने कहा ये था कि दिस डॉक्टर केम बैक, और वो बैठ के एक्चुअली ये बात कर रहा है कि वो एम कर रहे थे कि कहाँ पे हम मारेंगे। तो पहले दिन जिन स्नाइपर्स ने एम किया सर पे किया, कुछ जगहों पे कुछ बच्चे, और They turn अचानक it एक into a साथ उस game. दिन Yes. They turn it. एग्जैक्टली अचानक एक दिन एक सारे बच्चे आते हैं जो कि जिनको एक ही जगह पे शूट किया गया है, ठीक है। Yeah. तो अब बात ये है कि ये सारा मुफ्त में जो ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज उनके पैसा बेतहाशा है। अगर ये अफ्रीका के अंदर अभी तक ऑपरेशन कर पा गए तो वो इसी वजह से। एंड क्लोजर टू होम जो बात हम करने लगे थे कि जब ये सिचुएशन खड़ी हुई तो अगर आपको लगता है ये फलस्तीन पे रुक जाएगी, ये फलस्तीन पे नहीं रुकेगी। इसका एक ट्रेलर आपने अभी देखा है कि वो ईरान जिस पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके बावजूद ईरान ने कहा कि भाई मैं अपने आप को खुद सस्टेन कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है ना। उसके बावजूद आपने रजीम हटाने के लिए, वो रजीम जो कि आपके लिए काम नहीं करेगी, उसको हटाने के लिए आपने उस पर अटैक कर दिया। और क्यों किया आपने ये अटैक? मतलब Okay, sorry. sanctions तो लगे Yeah, हुए yeah. हैं। हाँ. फिर Obviously, we're going a पाकिस्तान के little off ऊपर track here. पर Rahila. आप ये बात, और एक बात जो आपको समझनी चाहिए, वो ये जो गोलियां, ये जो राहिला ने कहा कि जो इसराइल आर्म्स एंड एम्यूनेशन अफोर्ड कर रहे हैं, आपको एक बात समझनी चाहिए कि 2024 के लास्ट क्वार्टर में इसराइल की अपनी इकोनॉमी जो थी ना, वो $340 बिलियन के खसारे में है। बिल्कुल। तो इस सब की अफोर्डेबिलिटी इसराइल अपनी इकोनॉमी से नहीं कर पा रहा है। और कभी नहीं US किया, है, कभी नहीं किया। कभी भी Yeah. इसराइल की अपनी इकोनॉमी इस काबिल है ही नहीं, नहीं, which नहीं, नहीं. makes it clear why you should boycott, No, because it no. is these Yeah. American But you see, corporations that are facilitating right. this But I kind think, of look, it's not specific to Palestine, first of all. Boycott is something that people have been trying to do for many, many years. And the only reason that apartheid fell in South Africa was because of boycott. The only reason that Nelson Mandela said that we're not free until Palestine is free is because he recognized that all of your corporations are connected and all of the money around the world that is funding wars are all connected. They are connected whether we recognize it or not, and it all has to do with capitalism. Capitalism is right, Yep. is the umbrella on top, and the only way capitalism perpetuates itself is if we continue to consume. absolutely.
it's all about our consumption. And the minute we organize, and they do everything they can to make sure that people don't organize together as a group, or with understanding कि हम लोग अगर एक इकट्ठे हो जाएं तो हमारी ताकत उनसे ज्यादा है। हमारी ताकत और उनसे ज्यादा है, हम ज्यादा लोग हैं, तादाद हमारी एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा है। हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि अब तो एक socialism, they have spent the last 80 years denigrating socialism or communism and saying that, oh my god, communism is bad. Why have they spent so much time doing that? Why have they spent so much time demonizing the Soviet Union or demonizing China, which are flourishing under communism, under socialism? Not communism, actually socialism. They might have been communist to begin with, but now they are completely socialist, and in fact they're also partially capitalist as well now. China ki baat kar rahi hu. Even Russia may have started off communist, but they're now more socialist and capitalist than they are communist. The point is that they have the capitalist countries, the corporations, have spent billions of dollars and decades trying to make us think that us organizing is a bad idea. Absolutely. Because terrible things happen when we organize. And I also think there is a lot of negative propaganda related to making us feel that boycotts don't work. अगर आप facts जाके देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट निकल गई है इसराइल से। इसराइल की अपनी सबसे बड़ी टेक कंपनीज ने इसराइल को छोड़ दिया है। बिल्कुल। अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स जाके देखें तो बायकॉट्स वर्क एंड दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। But what they want you to believe is that you do not have power, which you do. Or what personally, because I think that I am an artist now, but what annoys me personally is when they say don't bring politics into art. But I mean, art and music, when musicians say something, or artists say something, or actors say something, and they take a side and they say that free Palestine or end the genocide. Oh my God, what terrible words to say! And they try to say that nahi, art में इन चीजों की जगह नहीं है. Actually, this is so wrong. आर्ट का मकसद ही यही है कि हम लोग एक आईना आपके सामने खड़ा करें और आपको बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको दिखाएं। अच्छा मेगा, फिर अगर आर्ट में अगर इसकी जगह नहीं है पॉलिटिक्स की, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 सेकंड तो हम ये सोचते हैं कि आर्ट में वाकई इसकी जगह नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये आर्ट सिर्फ आपके फाइन आर्ट्स हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है? क्योंकि अनवर मकसूद, मोइन अख्तर के जो कॉम्बिनेशन था, उसकी पूरी की पूरी जो बेसिस थी जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर हुआ, वाज द पॉलिटिकल सटायर। ठीक है ना? आप अगर फैज अहमद फैज को उठाते हैं और आप देखते हैं कि उनकी जितनी भी शायरी थी, जो आर्ट एंड लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कॉन्स्टेंटली रेवोल्यूशन के ऊपर आई है। ठीक है ना? आप इस वक्त अगर उठाएं और जाकर के अपनी पूरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट उठा के देखते हैं, तो आपके पास परफॉर्मर्स थे और परफॉर्मेंस का इस्तेमाल किया जाता था। चलें आप हमें छोड़ दें कि सब कॉन्टिनेंट में लोगों का दिमाग खराब है, क्योंकि हमारा भी बड़ा कलोनियल माइंडसेट है ना। आप अगर जाकर के पुराना जमाना उठाएं तो ग्रीस के अंदर, यूरोप के बाकी ममालिक में जो इस्तेमाल, और पुराने जमाने में भी आपके पास थिएटर का इस्तेमाल किया जाता था जस्ट टू मेक श्योर कि जो आपका गवर्नमेंट का नेगेटिव है वो लोगों तक उसी तरह चाहे जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि लोगों को अंदाजा है कि इससे फर्क क्या पड़ता है आवाम पे। ये मुझे तो वो पैटर्न नजर आ रहा है इसके अंदर, ये आपकी कैपिटलिस्टिक इंपीरियल सिस्टम का, कि मजहब को फॉलो करो, रिचुअल्स तक, निजाम की बात मत करो, आर्ट करो, फाइन आर्ट्स जो रंग भरो, ड्रामे करो, निजाम की बात नहीं करो। ये लोग सिस्टम पे बात करने के खिलाफ हैं, चाहे कोई भी पैराया हो, वो ये नहीं, वो आप करें, को आजादी देते हैं आपको, बट आप सिस्टम की बात नहीं करेंगे, आप पैसे पे बात नहीं करेंगे, आप इंसाफ पे बात नहीं करेंगे, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बाकी आप सारी बातें करें। और ये सोवेनिटी या आज़ादी जो हमें दी है, ये एक लिमिटेड आज़ादी है ना, और हम लोग रेकग्नाइज करते नहीं है कि बहुत लिमिटेड है। The reason that they're annoyed with China in a lot of things is China insists on a couple of things. First, economic sovereignty, which you can talk about
in this thing as far as Pakistan is concerned, कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है. But China also has digital supremacy, whether we recognize it or Absolutely. not. So they will not use platforms. And why will they not use platforms that are common to the rest of the world? They will not use Facebook. They will not use WhatsApp. They will not use Twitter or TikTok or any of these things. The reason is that information about us is collected by all of these platforms, and then that information is sold onwards to advertisers who will, make their money by targeting consumers and making sure that we continue to buy the products that they want us to buy and not buy local stuff. But China has digital sovereignty. They control the information. So the information is not being sold off. You do not know about Chinese citizens. You do not have information about them. You can't target them. You have no idea what they're doing. And we seem to think, I mean, हम लोग तो हंसते थे. In fact, I was working with the company that we couldn't get in touch. We had some colleagues in China and they couldn't get in touch with us on a regular platform. We had to download WeChat, which is a Chinese version of WhatsApp. It's actually much better than WhatsApp, but I don't have any connections on WeChat. Otherwise, I'd be using it. But they said no, they can't do WhatsApp. They have to use WeChat, and we would laugh at them. We did laugh at them that, oh my God, बेचारे ये लोग WhatsApp नहीं इस्तेमाल कर सकते, पूरी दुनिया से connect नहीं हो सकते हैं. But now I've realized that they are much better off than us because they do have digital sovereignty. डिपेंडेंसी नहीं है ना, डिपेंडेंसी नहीं है. और ये मतलब जो हम नहीं समझते हैं बार बार इस बात को कि आपकी जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इसने कितना नुकसान आपकी अपनी इकोनॉमी को पहुंचाया है, इसके बारे में हम सोचते नहीं है. मैं अभी बैठ करके लाइक आई सेड, आई वाज स्टडीइंग कि जी क्या डिफरेंस आया, क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान जो कि 60s तक बहुत अच्छा कर रहा था इकोनॉमिकली, ऑल ऑफ अ सडन आपके पास एक स्लम्प आया है. और इसको समझना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि ऐसा क्या किया हमने, हमें इस टॉपिक पे बात करनी थी. तो फिर चाहते ना चाहते हुए आई हैड टू गो बैक एंड आई हैड टू स्टडी कि जी व्हाट हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश. ऑन द टाइम स्टैम्प अगर आप देखते हैं, टाइमलाइंस को अगर आप चेक करते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान आगे पीछे ही इंडिपेंडेंस लेके बैठे हैं, ठीक है ना. और 60s तक पैसे ना होने के बावजूद वी वर डूइंग बेटर. और इसी के ऊपर एक वो और उससे और इंडिया का एक मजाक उड़ता था एक जमाने में, क्योंकि उनके पास जो है मूवीज जो थे उसमें अगर आप देखें कोई फॉरेन गाड़ियां नहीं थी. उनके हम यहाँ पे कोक पेप्सी पे लड़ रहे हैं, उनके पास थम्स अप चल रहा था उस वक्त, ठीक है. और वहां पे बिल्कुल इस चीज को रोका गया. इन्होंने ये कहा कि जी आप पहले अपनी स्ट्रेंथ्स देखें और आप ये देखें, वो जो हमने बात की थी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बैलेंस की, कि आप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऐसा क्या बना सकते हैं जिसको बाहर बेचा जा सके. जिसमें पहला काम इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले मुल्क के अंदर होगा. अब मुल्क के अंदर इसीलिए हुआ कि लोगों ने चीखें मारी कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. हम अगर बाहर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जी उनके पास ग्लासेस कितने अच्छे हैं. बांग्लादेश में ये हुआ था एक जमाने में, आप क्रिस्टल के ग्लासेस नहीं ले जा सकते थे, वो सिर्फ लोकल जो उनकी ग्लास बन रही थी या स्टील के ग्लास से उसका इस्तेमाल हो रहा था. एंड दैट पुट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड ऑन द कॉर्पोरेशंस देयर कि जी आपको अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी करनी है कि आप इसे बाहर बेच सकें, नॉट जस्ट फॉर लोकल कंजम्पशन, मगर उसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन हो कि उसे बेचा जा सके. जब उन्हें ये लगा कि अब हम तैयार हैं, क्योंकि हमने खरीदना खत्म कर दिया था, तो हमारा इंपोर्ट इतना नहीं था और हम सब कुछ लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे थे. फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे आए कि जी अब हम ये देखते हैं कि इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन की जाए कि इसे बेचा जा सके, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है. मगर उसमें एक पूरा अरसा है जो कि दोनों मुल्कों ने अपने आप को जो है रोका Substitution करने के लिए. चीजों के They इस्तेमाल से, banned ठीक है ना, imports, yeah, for many ठीक है. years और इन्होंने and कहा built their own कि industries. चीखें आने दो, चीखें इसलिए आने दो क्योंकि ये चीखों से हमें ये पता चल रहा है कि क्वालिटी क्या है. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन ट्रैवल नहीं हो रहा था, फॉरेन ट्रैवल हो रहा था, वो लोग एक्सपोजर से आते थे. अब ब्लैक में चीजें आ गई हैं, इसलिए क्योंकि इनको ये समझ आ गया कि भाई ये लोग जो बाहर जा रहे हैं, ये बाहर अच्छी चीजें देख रहे हैं, खा रहे हैं, और हम नहीं कर पा गए इसे. तो ये प्रेशर आया था गवर्नमेंट का कि ये अपॉर्चुनिटी है फॉर बिजनेस.
टेक्सटाइल जो बात इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर इसी तरह से खड़ी हुई कि इस वक्त अगर आप जाएं और जा करके देखें तो उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी एक सेक्शन है उसका जो कि खड़ा हुआ है सिर्फ गारमेंट्स के ऊपर, जिसको ये लोग ना सिर्फ ये कि लेबर के तौर पे देते हैं मगर ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसी तरह इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को किया, मगर उनका जो फिशिंग है या एग्रीकल्चर है जिसको ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या टैक्स भी हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स थे जो इस पॉडकास्ट की वजह से मुझे पढ़ने को जो मिले। जो आप पूरी बात कर रही है ना राहिला, उससे एक चीज नजर आ रही है कि गवर्नमेंट हैड द इंटेंशन टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट और फिर दे मेड पॉलिसी दैट फैसिलिटेटेड दैट। या मैंने हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आज ये है कि वी शुड बाय लोकल, and in order to buy local you should have local products available that can be bought। और लोकल प्रोडक्ट्स बनाएगा कौन? लोकल इंडस्ट्रीज। और लोकल इंडस्ट्रीज कैसे फैसिलिटेट होंगी? जब आपके ग्राउंड पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज होंगी जो कि लोकल बिजनेसमैन को काम करने थे। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब आप लोकल चीजें, जैसे राहिला ने समझाया, लोकल चीजें आप बनाएंगे तो आपका पैसा आपके ही मुल्क के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। आप यहीं से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, यहीं के लेबर को देंगे, यहीं के गाड़ियां और सड़कें इस्तेमाल करके वो जाएगा, तो पैसा आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा। लेकिन जो बहुत जरूरी है आपकी लोकल इंडस्ट्री के फ्लरिश होने के लिए वो है पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने एक अपने दोस्त से बात करी जो कि एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, और मैंने उससे बोला कि ऑन द टॉप ऑफ योर हेड टेल मी 5 थिंग्स दैट are problematic for your business, that are not allowing you to do business the way you would like it to do. The first thing he said was the utilities. He said कि as an industrialist मेरे लिए रोज का मसला है कि बिजली आ रही है, नहीं आ रही, गैस है, नहीं है, कोई the absolute absence of system। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में आज हम, स्पेशली अगर आप कराची में रहते हैं, तो आपके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अचानक आपकी लाइन कट सकती है, अचानक आपके पास 5 लाख रुपए का जुर्माना आ सकता है, आपके साथ कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। और उसकी कोई आपको अचानक आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये आपके लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। और दूसरी बात ये जिसपे हमें बहुत जरूरी बात करना चाहिए, जो आपका सारा पावर का मसला है, आपके फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से आपकी बिजली इतनी महंगी है। He said to me कि all these expensive utilities and then top it with all these horrible tax policies, जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिबल ही नहीं रहती, क्योंकि इंडिया वही प्रोडक्ट उससे सस्ते में बना रहा है, चाइना वही प्रोडक्ट उससे सस्ते में बना रहा है। तो आपका लोकल प्रोड्यूसर अगर कुछ प्रोडक्ट बना भी पा रहा है तो वो आपके टैक्सेस और एक्सपेंसिव यूटिलिटीज की वजह से इतना महंगा है कि अब वो मार्केट कंपैटिबल नहीं है। और दूसरी बात उसने कहा कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो कन्फेक्शनरी बना रहा है, टॉफीज, चॉकलेट्स, तो वो जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो रेडी पे लगाती है इन चीजों को, और तो उसने कहा उनके लिए भी अफोर्डेबल नहीं रहता वो, क्योंकि आपके टैक्सेस इतने हैं कि उस ठेले पे जो बच्चा खरीदने के लिए आ रहा है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो चीज वो खरीद सके। तो आपका लोअर सेगमेंट जो है आपकी इकोनॉमिक क्लास का, वो भी उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई इतनी ज्यादा है कि आपके फिर प्रोड्यूसर के पास रह कितना गया मार्केट सेगमेंट जो वो खरीद सके। एक बड़ा चैलेंज है। एंड देन ही सेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो नॉट रिलायबल। किसी भी वक्त कोई सड़क बंद हो सकती है, कोई मसला हो गया, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, कोई बाइकॉट, कोई लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सड़क बंद हो गई। अब आपका ना एक तो सड़कें हैं नहीं, और अगर जहां सड़कें हैं वो अनरिलायबल हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह इस मार्केट I mean, बहुत जब जरदारी पहली दफा प्रेसिडेंट बना था तो उस वक्त that was 2007, right? 2007, 2008. So our textile mills in Faisalabad pretty much all shut down because वहाँ पर बिजली नहीं थी। और सबसे बड़ा हमारा it's the biggest industry in Pakistan. The fashion industry, the textile industry is the biggest industry in Pakistan. And you crippled it by shutting down half of Faisalabad.
because you couldn't provide them electricity on a regular basis. And now, even now, when you look at some of the big brands, I was shocked to find out that they were marketing themselves by saying that, oh my God, we've got Egyptian cotton. Like, why do you have Egyptian cotton? Egyptian cotton when you grow Why your do own. you have Egyptian cotton when Pakistani cotton may be second to Egyptian, but Pakistani cotton would be so much better? And they're like, no. Yeah. I mean, हम लोग खुद जब when we worked at a certain organization that whose name I don't want to take, but all the printing would be done outside the country. All the printing, because we just could not afford to print it locally, which sounds counterintuitive, but we would fly to Malaysia to print like massive number of books and then transport them back. And apparently that was cheaper and higher quality than printing them over here. अच्छा, उसमें दो चीजें थी. I'll just come back to that because I was on that business side of it. Because आपके पास दो चीजें, उसमें दो challenges. It's important to mention. आपकी बात सही है, मगर उसमें दो बातें mention करना बहुत जरूरी है. पहली बात तो ये कि हमारे वहाँ पे requirement आ गई थी certified paper की, और पाकिस्तान के अंदर सर्टिफाइड पेपर की जो अवेलेबिलिटी थी वो उतनी अमेजिंग थी नहीं. दूसरी बात ये थी कि क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक जो कि हमारे डिवीजन में आते थे, उनकी भी प्रिंटिंग हो गई थी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वो आपको चीपर पड़ रहा था. मगर हाँ, आप दोनों की बात अदरवाइज सही है. नाउ कमिंग बैक टू के ये मैथ काम करती किस तरह से है, तुरंत के हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या हमारे पास सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है जहाँ पे इसको आप कर नहीं पा रहे हैं. देखो, तुम आपकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तब तक नहीं है जब तक आपके पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना. तो अगर आप इंपोर्ट करके अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसको आप जो है मुश्किल में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेन क्या कर रही है, वो इंपोर्ट कर लेती है. ठीक है, वो इंपोर्ट, आपके पास प्याज खत्म हो गई, इसने इंपोर्ट कर ली. अच्छा, अब ये आपके एसेंशियल्स हो गए कि जी आपके पास आपकी जो खाने का तरीका है, जो आपकी कल्चर का एक मेजर हिस्सा है, क्योंकि खाना बहुत बड़ा इंपोर्ट है हमारे मुल्क का, बहुत बड़ा, जिसमें आपके पास ना सिर्फ ये कि आप बेसिक अपने क्रॉप्स जो हैं गंदम, उनको, हम लोग गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं. ओह माय गॉड, वी आर एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. और उसके बावजूद आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चावल इंपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, ये अपने आप में एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन है, तो लेकिन ये आपकी पॉलिसी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपोर्ट करने को ज्यादा प्रेफर करती है रादर देन आपका किसान गरीब से गरीब तर हो रहा है. मैं तुम्हें पावर समझा गई नहीं. किसान वैसे, अच्छा, नहीं, किसान जो इंडिविजुअल लेबर है किसान वो गरीब गरीब से हो गरीब रहा है, तर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. ठीक है. जो तुम्हारा, हाँ, मैं भी इस पे आने लगी थी कि तुम्हारी लेबर जरूर गरीब हो गई है, मगर तुम्हारा जो लैंड ओनर Elite है वो class. गरीब नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो But you नहीं हो see, रही है that's what the गरीब, policies are doing, right? Each one of these ठीक है. policies are making sure अब that they benefit themselves and not the अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ common कि man. एक, अगर याद हो, हमारे पास एक टाइम आया था जब चीज के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे थे, ठीक है ना, और हम सबकी चीखें निकली थी. हम सबकी चीखें निकली थी. आई रिमेम्बर आवर फ्रेंड राहील, ही वाज लाइक, चीज के ऊपर लग गया है, ठीक है ना, क्योंकि लग्जरी आइटम था. अभी भी अगर आप जाएं और आप जाकर के अपनी ग्रोसरी करें किसी सुपरमार्केट से जो कि पीओएस सिस्टम के ऊपर चल रही हैं, तो तुम्हें देख के मजा आएगा कि जो टैक्सेस हैं वो अलग अलग हैं. टैक्सेस जो आपके एसेंशियल्स हैं उन पे अलग हैं, और अगर आप बिस्किट खरीदते हैं जिसको लग्जरी कहा जाता है, उस पे टैक्स अलग है, ठीक है. ये निकाल के देखो, बहुत मजे की चीज है वो. दैट रिसीट इज एन इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट फॉर मी. अब आप इस बात को समझें कि जो, देखो, जब तक तुम्हारे पास डिमांड नहीं आएगी ना, तब तक तुम्हारे पास सप्लाई की सिचुएशन खड़ी है. ये सप्लाई चेन का रूल है, ठीक है ना. तुम अभी इस वक्त मार्केट में भर दो टमाटर, तो लोग किस हद तक खरीद लेंगे, एक हद तक खरीदेंगे ना, उसके बाद वो कहेंगे सही, हमें जरूरत नहीं है. कोई बहुत दूरंदेश होगा जिसके पास बड़े बड़े, आपके पास अगर डीप फ्रीजर्स हैं, तो वो उसे उबाल के प्यूरे बना करके फ्रीज कर लेगा. इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, वो उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है. आपकी पॉलिसी जो है, आप अपना पावर समझें कि आप किस तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं. और ये बात समझ, मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि हम पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर पॉलिसी बहुत ज्यादा ड्रिवन है बाय द डेमोक्रेटिक पावर दैट पीपल हैव. आप अगर आज कह दें कि मैं जो है इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल नहीं करूंगा, या इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल नहीं करूंगी, और वो दुकानों के अंदर पड़े पड़े सड़ जाए,
ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ अरसे पहले एक स्टोर है जहाँ जो सभात के घर के करीब है, और मेरा वहाँ बहुत जाना होता है, क्योंकि मैं संडे को ग्रोसरी वहाँ से करती हूँ। तो वहाँ पे एक सेक्शन बना था इम्पोर्टेड चीज़ों का, जिसकी एक्सपायरी करीब थी, और वो 70% के डिस्काउंट पे वहाँ रखा गया था। जिसने फिर मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर तो आप डिसाइड कर लें कि मुझे जो है ये नहीं खरीदना, और कोई जगह 70% के ऊपर उसे बेचने को तैयार हो जाए, तो एक पॉइंट आएगा जब बिजनेस करने वाला ये कहेगा कि भाई मैं एसेंशियल्स चला रहा हूँ ना, क्योंकि सुपरमार्केट एसेंशियल है, और उसके अंदर लोगों ने कह दिया है वो नहीं खरीदेंगे, तो मैं इसको रखूंगा क्यों? जब मैं रखूंगा नहीं, तो डिमांड खत्म हो जाती है। जब डिमांड खत्म हो जाती है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सप्लाई का जो रुख है वो बदल जाता है। आज अगर इस वक्त एक चीज उठा ले, सब बंदे खड़े होके कह दें, पाकिस्तान कह दे कि हम कोक पेप्सी नहीं खरीदेंगे, अच्छा है बुरा है, कोला नेक्स से कहें कि अपनी क्वालिटी बेहतर करें, हम कोला नेक्स खरीद रहे हैं, हम पाकोला खरीद रहे हैं, ठीक है ना? तो कितनी देर तक आप सस्टेन कर सकेंगे यारी दोस्ती में पेप्सी कोला की सप्लाई किसी भी सुपरमार्केट के अंदर? आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो पॉलिसीज मैं आपकी बात से हर तरह से मुत्तफिक हूँ, लेकिन बहुत जगह हैं जहां पे आपको ये देना पड़ेगा। जिस तरह इनकी लेकिन कजन ने राहिला, कहा कि कोक नहीं हो सकती, किसी और बंदे ने भी एक बात की कि ये जो सारे लोकल चीजेस आ रहे हैं, ये सिर्फ बकवास है, फलाना है, ढिमकाना है, हम सिर्फ एक्स या वाई कंपनी की ही चीज खा सकते हैं। लेकिन राहिला, जो सारी बात आप कर रही हैं ये लग्जरी आइटम है। आटा एक एसेंशियल है जो जिसका बायकॉट आप नहीं कर सकते। अगर आप आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, आटा आपको चाहिए। द ओनली वे टू डील विद द सिचुएशन इज टू ग्रो आटा योरसेल्फ सो दैट पीपल कैन बी फेड। क्योंकि आटा तो आपको एक्स क्वांटिटी में चाहिए, अब चाहे वो हर आप हाल खुद में। उगाएं या आप इंपोर्ट करें। यहीं पे सैंक्शंस का जो बीडीएस में सैंक्शंस है ना, वो इसी बात में है कि आप पॉलिसी as a group you force your government to make policies। अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि डेमोक्रेटिक पावर ऑफ पीपल कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड एक टू कहानी सर्टन मुझे एक्सटेंट, टू अ to a सर्टन certain- एक्सटेंट, नॉट मच, एक नॉट मच। एक एक बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी कल पता चली which has a great impact on the economy of Pakistan। ये 1994 से स्टोरी शुरू होती है, और इसमें वर्ल्ड बैंक और यूएस ऑफिशियल्स पाकिस्तान को कहते हैं कि आप एक काम करें, आप इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराएं। आपके पास बिजली कम हो रही है, तो आईपीपीज। आप एक काम करें, आप प्राइवेटाइज करें इस एरिया को, और आप आईपीपीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लेकर आते हैं, वो आके कंपनीज यहाँ आपको बिजली बना के देंगी और आप वो बिजली खरीदें उनसे। हम कहते हैं वाह वाह वाह, $5 बिलियन, आई एम श्योर, आई थिंक $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, 5 या $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, आई थिंक 5 था। अब हम बहुत खुश हैं कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई और अब तो आईपीपीज लग रहे हैं। और चालाकी उन्होंने ये करी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने आईपीपी से करे बिजली खरीदने के, उसमें उनका प्रॉफिट आपने उनको डॉलर्स में देना। जी, और दूसरी बात ये कि आपने एक अमाउंट तय करी कि आप उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, वो अमाउंट आपने उनको पे करनी है देना है, डॉलर्स में। और बिल्कुल। 1994 में ये सिलसिला वर्ल्ड बैंक और यूएस ऑफिशियल ने आपके मुल्क में शुरू कराया। आज आप बेनजीर वहां का था ये गए हो पॉलिसी। कि कि ये आईपीपीज जो अब आपका 50% एनर्जी जनरेट आपको करके दे रहे हैं, ये फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, और फॉसिल जी, फ्यूल आपकी टोटल इंपोर्ट्स का 1/4 है अब। जी, तो एक एक आप समझ लें, एक सांप की तरह ये आईपीपीज आपके ऊपर बैठी हुई है। आपकी इंपोर्ट्स नीचे नहीं आ सकती क्योंकि इनको फ्यूल इंपोर्ट करना है। आपकी एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट बढ़ सकती क्योंकि ये इंपोर्ट की हुई फॉसिल फ्यूल से जो बिजली पैदा करते हैं वो इतना महंगा है कि आपका लोकल बायर उसको खरीद के वो प्रोडक्ट ही नहीं बना सकता जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो और वो आप एक्सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। आप और अब ये आपकी आईएमएफ, ये अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड मैप, आईएमएफ, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, और ये मिलके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। आपका हम्म, इस दफा जो आपको शहबाज शरीफ को 2022 में या 2023 में जो उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, नहीं नहीं, उसमें अभी उन्होंने मई 7 के तो बाद उन्होंने उन्होंने दे दिया था हमें लोन तो उसमें एडवांस। उन्होंने अब के क्या कहा है, यही कहा है। दो जो उनकी शर्तें क्या हैं कि आप एनर्जी सेक्टर से सब्सिडीज हटाएंगे, यानी कि आप बिजली को और महंगा करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, मजीद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनको बेचें आप। ऐसो इसको,
जी कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा आपके अपने हाथ से। और एक बात और जो मैं यहाँ ऐड करूं, जबकि हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात कर रहे हैं, कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब एक एटोनोमस इदारा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और स्टेट बैंक को लीड करने वाले जो लोग हैं वो खुद आईएमएफ में 18-20 साल और उससे पहले वर्ल्ड बैंक में काम करके आते हैं। जी तो अगर आप कोई आपकी हुकूमत बाय सम मिरेकल कोई ऐसी पॉलिसी इन्फोर्स भी करना चाहे जिससे आप इस सिस्टम को तोड़ना चाहें, तो उनके पास पूरी ताकत है कि वो उस पॉलिसी को ना आने दें। बिल्कुल अब आप मुझे बताइए इम्प्लीमेंट ना इसकी होने दें बेसिकली। एंड ये तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी कहाँ गई? नहीं है हमारे, वी डोंट हैव इकोनॉमिक सोवरेनिटी, और हम लोग ये चीज समझते नहीं हैं। या आई थिंक हमारी एक क्लास है, मैं जब इस्लामाबाद में थी तो आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग थे मेरे जैसे जो प्रो इमरान खान थे। द रीजन वाज दैट दे वर ऑल इन बिजनेस एंड दे सेड कि हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए नवाज शरीफ की पार्टी आनी चाहिए, बिकॉज नवाज शरीफ एब्सोल्युटली। will bring IMF. I mean, the first thing that they did, the first thing that Zardari and Nawaz Sharif did when they came into power in 2007 after removing Musharraf and Shaukat Aziz, the first thing they did was to get an IMF loan. Halaki Shaukat Aziz had issued a huge number of government prize bonds and paid off the the final tranche of the IMF loan, and that's why the government was toppled. That's why Musharraf was toppled. It had nothing to do with democracy and nothing to do with him being a dictator. He wasn't. I mean, मुझे तो समझ में नहीं आता है वो लोग जो कहते थे कि oh my God, such a ruthless dictator. I'm sorry, आपको जिया याद नहीं है? आपको जिया की हुकूमत बिल्कुल भी याद नहीं है? हो सकता है कि नहीं याद है क्योंकि आप लोग या तो पैदा नहीं हुए थे, या आप short term memory तो everyone in this country has. But Zia's was much worse. Musharraf was not at all a dictator in those terms. The only reason they were toppled is because we were stepping out of the IMF stranglehold that they have. And most recently, I think last year, JD Vance, Vice President of the US, at some summit meeting, I don't even remember what, he very clearly said that the reason that they're upset with China is because the purpose of the countries in the global south is not to be self-sufficient and to industrialize. The purpose is to be their resource um, supply. Basically, that's the only thing that we should be allowed to do, which is export raw materials, so that obviously raw materials the amount is really cheap, but to export our resources, our natural resources, to the global north, to the countries like to Europe and America, basically. and provide cheap labor where needed. Cheap labor. But basically, the point is, I heard this somewhere in another podcast where somebody pointed out that 89% of the world's resources, natural resources, exist in the global south. 89%, yani Europe and North America have 11%, and they consume more than 50% of the world's natural resources, which is why they need to keep us under the boot and in the IMF thing, because we should not step out of this role. Because अगर हम लोग अपने resources खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनके लिए कम पड़ जाएगा, उनके लिए और कम पड़ जाएगा। ये पॉलिसी रही है पॉलिसी है जब बिल्कुल। जब इंग्लैंड में कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रियां लगना शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता की सबसे पहले इंडस्ट्री को जी तबाह किया जो ताकि ऐसा बिल्कुल ना हो कि छीट हम जो कपड़ा बनाएं। था, जो छीट कपड़ा था, अभी उसी दिन ये बात आ रही थी कि छीट कपड़े को बैन कर दिया गया, ठीक है ना। बिल्कुल और ये आपके पास आता था यहीं आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, बंगाल से, इन सब जगहों से ये कपड़ा जाया जाया करता था, और बहुत destroyed the सारी इंडस्ट्रीज खत्म की गई, ठीक है ना। जैसे कि एक आपको अब मिलता है, दिस आई नो बिकॉज माय मदर वुड सिट डाउन एंड शी शोन मी फैब्रिक्स, कि एक फॉर एग्जांपल एक कपड़ा था जिसे आप कांजीवरम कहते हैं, ठीक है ना। ना कांजीवरम या जो आपको मिल रहा है इस वक्त इंडिया में इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जो बिहार पे बन रहा था, ठीक है। और वो पूरी पूरी गांव को जला दिया गया ताकि ये आर्ट खत्म हो जाए। आप उठाएं, अगर उठा करके इस वक्त आप देखें कि जो छीट एक कपड़ा, ये मतलब रिसेंटली मैंने देखा, इस वजह से मैं बता सकती हूँ कि छीट एक कपड़ा था जिसको मना कर दिया गया कि आप जो है इसे इंग्लैंड में ला नहीं सकते आप इसे,
और फिर खैर उन्होंने फिर अपना बनाया किया जो कुछ भी था, बट इट वाज स्टिल नॉट एज गुड, क्योंकि आर्ट्स में ये जो साउथ एशिया था ये बहुत आगे था, स्पेशली व्हेन इट केम टू फैब्रिक। मेरे ख्याल से हमें हमेशा से अच्छे कपड़े पहनने का, मलबूसात का शौक रहा है, आर्ट्स का शौक रहा है। आर्किटेक्चर हमारा प्लेन ब्रिक नहीं होता है, उसके ऊपर आर्टिस्टिक आपके एलिमेंट्स होते हैं, और वो फैसिनेट करते थे लोगों को, क्योंकि ये सब हाथ का काम होता था। आई एम सॉरी, आप ये बात ऐड करें कि जिस वक़्त हम ये कपड़ा बना रहे थे वहाँ वेस्ट में लोग नहा भी नहीं रहे बिल्कुल। जी, जी। थे। वो बहुत सारी कहावतें हैं जो कि ना नहाने की वजह से दुनिया में आई। क्योंकि एक ही पानी के अंदर पूरा घर नहाता था, आखिर में बच्चा That's नहाता था, तो आखिर में सो यू थ्रो द चाइल्ड आउट। but see, you know, परफ्यूम जो कि फ्रांस का Throw the baby with the bathwater. माना हुआ है, उसकी वजह यही है कि जो महक थी, वो महक जो है नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी, और क्योंकि सारी आई थिंक सारी शादियाँ अप्रैल में होती थी, क्योंकि अप्रैल में ही वो टब की सिचुएशन होती थी, तो अप्रैल में ही ईयरली जो बैथ होता था वो ईयरली होता था, तो उस Good. वक़्त सारी शादियाँ तब हो Right. जाती थी। Apart from all of these gross kind of Yeah. things, oh my God. The reality is that this is what the और the मु- और colonizers मुझे did to us, right? हमें एक हमारी एक चीज़ इंडस्ट्री तबाह करके हमें एब्सोल्युटली raw material हमसे raw material source करके they took our knowledge, they created the cloth themselves and then sold it back to us at such a premium that एब्सोल्युटली we और were पता है मुझे paying लगता है for our सबात own stuff. रायला ये भी एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि इम्पोर्टेड चीज ज्यादा अच्छी है और लोकल चीज बिल्कुल अच्छी नहीं। बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट प्रोपेगेंडा, क्योंकि अगर इस वक्त आप देखें इंस्टाग्राम पे देयर इज नंबर, मतलब मैं तो कहती हूँ एक पूरी जनरेशन है जो इंस्टाग्राम पे बिजनेस करी है, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट प्राइमरली विमेन जो अपना घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, साथ में एक साइड बिजनेस भी कर रही हैं, और आप उनकी क्वालिटी देखें, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सीलेंट। तो अगर हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि इस सिचुएशन के बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विच आर एक्सीलेंट इन क्वालिटी। आई हैव अ फ्रेंड who embroiders bookmarks, Oh, and वेरी नाइस। she sent some of those to her friend in the US, और उन्होंने कहा कि उनकी नेबर चलती हुई जा रही थी तो उसने सारे खरीद लिए, बिकॉज दे वर हमारी लोकल एम्ब्रॉयडरी वहां उस तरह हाथों हाथ बिक गई। ये वो लोग हैं जो कि पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, जिसको आप घरेलू दस्तकार कहते हैं, कि वो घर से काम करके जा रहे हैं। आपके पास पोटेंशियल बे इंतहा है, not आपकी just पॉलिसी। not just handicrafts, right? It's other things as well. Like I have slowly been switching over almost everything to non FMCG kind of stuff. Now, so for example, Dove mere shelf se khatam ho gaya hai. I now use Co Naturals, or I've found Skin Deep. That's the name of the other, हिंदी पे which is excellent as well. By the way, I highly recommend their shampoo, the shampoo bar that I got from them. It's really nice. और आपको पता है मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि 80% पाकिस्तान की वर्कफोर्स जो है ना वो एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड Small and मीडियम medium एंटरप्राइजेस enterprises. में एम्प्लॉयड है। एंड आई आल्सो रेड अ रिसर्च व्हिच सेड कि दुनिया में बढ़ती हुई इन इक्वालिटी, वेज डिफरेंस जो अब ऊंचे और निचले तबके के दरमियान पैदा हो गई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इन एफएमसीजी बड़े कॉरपोरेशंस Very की corporate. जॉब। यस। पाकिस्तान की 80% वर्कफोर्स जो है वो एसएमईज में काम करती है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको आप किसी हद तक आप आम जबान में सेठिया कंपनी कहते हैं, जो कि हमारी हाँ। लोकल कंपनीज हैं, वो Hmm. 80% I mean, Sethi लोगों थोड़ी को बड़ी होगी, but yes. 80% आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन कंपनीज में है। और आई वाज रीडिंग अ पेपर, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने सेड दैट दिस ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वेज इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस is they found that it is linked to the growing number of employment opportunities in large corporations। Right. उसमें ये भी रिसर्च में ये भी लिखा हुआ था कि एक छोटी कंपनी और एक बड़ी एफएमसीजी में जो लोअर मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी वेजेस में कोई इतना खास फर्क नहीं होता, बट एज यू गो अप द कॉर्पोरेट लेडर और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी वेजेस में
बहुत बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एग्ज़ीक्यूटिव लेवल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप एक सोशल क्लास में भी यू गो अप द सोशल लैडर एज़ वहाँ पे आप फिर डिस्पैरिटी क्रिएट कर देते हैं कि एक डायरेक्टर अगर एक लोकल कंपनी में है और एक डायरेक्टर अगर किसी एफएमसीजी में है तो उनकी वेजेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, जिससे माशरे में जो आपकी मिडल क्लास है, वो ख़त्म होएगी, क्योंकि एक ऊपर की क्लास हो गई और एक नीचे की क्लास हो गई, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ में ऊपर और नीचे की सैलरीज़ में बहुत फ़र्क है। वैसे इसमें जेंडर का भी एलिमेंट आता है, जस्ट टू ऐड टू दिस, क्योंकि हाँ, जेंडर लेकिन पैरिटी गैप के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन है। बात ये हो रही है कि क्योंकि आपकी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ 80% लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि इनको लीवे देना चाहिए, पॉलिसीज़ एसएमई फ्रेंडली होनी चाहिए, लार्ज कॉर्पोरेशन फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए, नहीं क्योंकि होनी आपका चाहिए। 80% लोग तो इन्हीं में काम कर रहे हैं। तो जितनी ये ज़्यादा फ्लरिश होंगी, उतना ज़्यादा आपकी आवाम को रिलीफ मिलेगा। Gee, अच्छा, and इसमें I mean, basically, the connection that people need to make here is that देखें आपकी local companies जितना ज़्यादा flourish करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी आवाम flourish करेगी. एब्सोल्युटली। And अगर आवाम flourish करेगी, थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो जाएगी, तो standard of living थोड़ा बेहतर होगा, आपकी हुकूमत बेहतर होगी ना, because आपके पास options आ जाएंगे कि हमारी हुकूमत कौन, हमारे हुक्मरान कौन है, वो कौन होने चाहिए या किसको elect करना चाहिए. It won't just be the same two families that have been lording it over us for 30 years. And that is a control that we have if we organize as people and say that yes, हमें imported कम चीजें चाहिए, हमारे अपनी चीजें हाँ, ज्यादा चाहिए. और हम लोग बात नहीं करते हैं इन चीजों के बारे में कि हमारे लोकल कंपनीज की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत हो अच्छी है। सकती है बहुत अच्छी. और हमारे पास इतनी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने जो आती हैं. आप मंटो को ले लें. मंटो जो 4 साल पहले एक छोटी सी दुकान थी जहां पर 2,000 रुपए में मैंने जाके सूट ले लिया था, और अब वो ही सूट 10,000 रुपए का मिलेगा मुझे. इनफैक्ट सूट भी नहीं, एक कुर्ता मुझे 10,000 रुपए का मिलेगा. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा है, लोकल कपड़ा है, उसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंग. But they've done it right. They've made it as a company or a brand in Pakistan that is doing really well, and that people, at least Pakistanis worldwide, want more Manto than anything else. लेकिन and I will अब add to this एक चीज, एक और example, because we were talking about hand embroidery. I started making a conscious effort of doing two things. Number one, sustainable, fashion. क्योंकि जितना पोल्यूशन आपके फास्ट फैशन की वजह से दुनिया में आता है, उतना और शायद किसी भी और चीज से ना आता हो. बिल्कुल. तो आई अंडरस्टैंड कि जिस सोशल सोसाइटी के अंदर हम घूमते फिरते हैं, वहाँ पे कपड़ों का मुसलसल चेंज होना बहुत जरूरी हो जाता है. वो भी एक पागल खाना है, विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट आई प्रेफर टाइमलेस पीसेस. तो मैंने फिर टू सपोर्ट द लोकल इंडस्ट्री, व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज दैट आई स्टार्टेड बाइंग हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स फ्रॉम द लोकल आर्टिजन्स. और कोई बहुत महंगे नहीं थे जब मैंने लेना शुरू किया. अब जगह मेरी पहुंच से बाहर हो गए वो, लेकिन वो मैंने शुरू किया. अच्छा, बहुत से लोगों का कहना ये था कि जी, फॉर एग्जांपल लखनवी चिकनकारी जो है, जो इंडिया से आती है, वो बहुत बेहतरीन होती है और सबसे अच्छी वही होती है. एंड आई वांट टू टेल यू कि जितनी दफा मैंने ट्रैवल किया, बहुत ही चालाकी से मैंने कोशिश ये की कि मैं अपने साथ यही हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहन के जाऊं, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा टच पॉइंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के, क्योंकि उनको नजर आता है. दूसरा, जब भी हम घर से बाहर जा रहे थे, मैं, बिकॉज आई वाज विजिटिंग माय सिस्टर्स, तो आई मेड श्योर आई वाज वेयरिंग दिस एंड आई वाज गिविंग दिस एज अ गिफ्ट टू माय सिस्टर्स, सो दैट व्हेन दे मूव अराउंड इन देयर कम्युनिटी, उसमें थोड़ी विजिबिलिटी आए इस चीज के ऊपर. एंड आई हैव टू टेल यू कि ये जितना हमारे दिमाग का फतूर है ना कि अच्छा सिर्फ बाहर का सामान है, जितनी ज्यादा मतलब तारीफें मिली हैं उस काम के ऊपर, जिसको पहन के मैं एयरपोर्ट्स पे थी, जिसको पहन के मैं वहां पे बाहर जा गई थी. अ, तो 2 मिनट को खुद मुझे नहीं समझ आया कि अगर ये इतना खूबसूरत है, जो कि एक अनबायस ब्रेन देख करके कह रहा है, उसकी एस्थेटिक्स कह रही है ये इतना खूबसूरत है, तो ये हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नजर आता है? हम उसे क्यों इस तरह से जो है इसके साथ पेश आते हैं?
अभी इसकी एक एग्जांपल वो भी है, डू यू रिमेंबर Sabahat, when we went to Hala and we got those very beautiful pieces there? Anywhere in the world, those hand painted pieces would actually earn so much money for your country. और मेरी और सबाहत की उनसे कॉन्वर्जेशन यही थी कि ये आखिर बाहर क्यों नहीं जा रहे? बहुत कोई मसले ऐसा थे ना है क्यों? हाला का, बहुत आई मीन क्योंकि हाला में बहुत तो बहुत infrastructure नहीं है basically. The Sindh government in any case doesn't do it for their own home base. Why would they do it for Hala? PPP is one of the most corrupt and useless governments in Pakistan, and people should be aware of this. Hala में infrastructure नहीं है, उनके पास investment नहीं आ रही है, उनके पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, वो लोग जो बेच रहे हैं उनके पास कोई आउटलेट नहीं है बेचने के लिए, कोई तरीका नहीं है जिससे वो हाला से बाहर अपना सामान भेजें, और जो आता भी है क्योंकि क्वालिटी इतनी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव investment and they don't have money as such. Because of that, their numbers are dwindling, and what they have done, which I found really annoying, but I guess they started copying Multani Yeah. crafts, right? They started doing the blue and the um, green stuff instead of the brown and the earth tones that are typical to Hala, because they realized that people were buying more of the Multan pottery than they were of Hala, and the only reason they're doing that is because Multan में at least थोड़ा सा infrastructure बनाया हुआ पंजाब है, इनसे बेहतर है। पंजाब ने हाँ निस्बत इनके मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर है, but not even they have their own issues. They नहीं, should be doing अगर आपके पास अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपका आर्ट अच्छा है, आपका क्राफ्ट अच्छा है, आपके पास स्किल भी है, लेकिन अगर आपके पास पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नहीं है, है। तो बहुत नहीं वो चीज पनप पाएगी। और इस बात को मुझे फिर मुझे इस बात को समझाइए। मेरा दोस्त आप दोनों से सवाल है कि जब पॉलिसी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोगों का इख्तियार ही नहीं है, पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हमारे नहीं हाथ ठीक में है, नहीं, I understand that. Look, तो हम क्या every करें? you do it on smaller scales. You do it Yeah. as a community, right? तो छोटे छोटे communities, आपकी हुकूमत वो काम नहीं करके दे रही है आपको, तो आपकी सिविल सोसाइटी को स्टेप अप होना जरूरी है. That's why TCF is flourishing, क्योंकि आपकी हुकूमत एजुकेशन नहीं इम्पार्ट कर रही है, तो TCF अब खुद इम्पार्ट कर रहा है. It's a citizen led thing, and they are doing much better than the government is doing. Obviously, Indus Hospital is then the second thing that hospital set example. is Yeah. an example. So civil society हिसाब will से तो always step in, and they लेकिन need to step in for more than just essential services. It has to be for more than लेकिन everything. सबाहत ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि मसले का हल कितने बिल्कुल भी लोग नहीं है. नहीं है, क्योंकि कितने लोग जब एक पॉलिसी ऊपर से आती है, गवर्नमेंट से आती है, तो उससे हजारों मतलब आपको पूरा मुल्क बेनिफिट करता है। अगर आप इंडिविजुअली प्राइवेटली किसी एंटिटी को खड़ा करते हैं इस काम के लिए भी, तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड है। Obviously. जब तो हम लेकिन हमारे पॉलिसी हुक्मरान यही है ना, हमारे हुक्मरान यही हैं, और जब तक आपकी इलीट वही इलीट इन्हीं को गवर्नमेंट में ला रही है, जब तक हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है at the end of the day. And you see the problem that I think happens in Pakistan is हम लोग ये कहते हैं कि अरे ये स्केल पे हो रहा ही नहीं है, तो फिर करने का फायदा नहीं है, but that's ये wrong. that was my point. That was my point. That's wrong. कि देखो जो बात इस वक्त सबाहत कर रही है ना, कुफलैन, इस बात को समझो कि आपके पास जितनी दफा कोई भी रेवोल्यूशन आया है, चाहे वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो आपका कोई सिविल रेवोल्यूशन हो, it will always start with a little bit of resistance, just a teeny tiny bit. ठीक है ना? अच्छा, उस आवाज का बढ़ाना और उसको किस हद तक आप लेके जाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम बैठ जाएं और हम ये कहें ये हमारे साथ हो गए और ये हमारे साथ हमेशा होता गया और हमेशा होता रहेगा, और हम या इसका हम कुछ नहीं कर डिसाइड करें सकते. कि और इसका हम कुछ नहीं कर सकते. एक माइंडसेट ये है, ठीक है, जिस माइंडसेट की वजह से एक एक्सोडस हो रहा है. मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि साउथ एशिया से जितना ब्रेन ड्रेन इस वक्त हो रहा है, इट इज अनबिलीवेबल. अगर आपको लगता है ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये आपके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, उसके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है. एक पूरी खेप उठ गई है और उठ करके जा रही है मुल्क से बाहर,
don't you think this is also part of the policy to export मैं people इसी पे आ now? गई हूँ। लोगों से मैं ज्यादा इस लोग जी, क्योंकि और बहुत क्योंकि सालों लेबर से है ना। है, करते हैं, बहुत हम सालों एक से। रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी है अब। It's हम not पूरी just देखो तरह that. अब It's not just our labor that is going abroad. I mean, my entire class, my entire O-level class is abroad. All of them. एब्सोल्युटली I think there are 4 of us out of 60 people who are here. The entire. माय लाइकवाइज लाइकवाइज, लेकिन अब जो बात मैं कर रही थी ना, मैं बात ये कर रही थी कि ये सोचकर क्या जो हो रहा है वैसे होने देना चाहिए, या कम से कम छोटे छोटे पैमाने के ऊपर आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस जो हैं उनको उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक लेकिन है। अब इसमें मेरा एक सवाल है, हाँ यहाँ रुक पाना भी एक प्रिविलेज है, क्योंकि अगर एक इंसान जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, मर खप के बसों में लटक के कुछ ना खा के उसने एक डिग्री हासिल करी किसी रेप्यूटेबल पब्लिक यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उसकी जॉब लगी, अब उसका पूरा घर उसकी तरफ देख रहा है कि ये बच्चा अब वर्किंग लाइन में आ गया, अब ये हमारे घर के हालात बदलेगा। आपकी इकोनॉमिक महंगाई यहाँ पहुंच चुकी है। इस आई थिंक 2023 का मैं पढ़ रही थी, आईएमएफ ने आपकी 0.5% जीडीपी ग्रोथ की प्रिडिक्ट की थी, 0.5% जो कि ना के बराबर, और आपसे वो भी नहीं हुई। जो आपने की वो 0.29% थी, और इन्फ्लेशन आपकी इससे कहीं ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फ्लेशन जो थी वो 27% थी। अब ऐसे हालात में एक इंसान अपने घर को कैसे सस्टेन कर सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि आज के हालात में एक मिडिल क्लास इंसान 2 से 3 बच्चों को स्कूल पढ़ाते हुए एक किराए के घर को अफोर्ड भी कर सकता है। सो नेचुरली यहाँ रुख पाना निजाम को बदलने के लिए भी उन्हीं लोगों के हाथ में जो प्रिविलेज हैं कि यहाँ रुख अफोर्ड जिंदगी अफोर्ड कर सकें। बहुत सारे लोग यहाँ अफोर्ड कर ही नहीं सकते जिंदगी को। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है ना। अम, ये क्योंकि मैं अब जब इसको मैं स्टडी कर रही थी तो कुछ मैंने लाइफस्टाइल चॉइसेस, लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स जो आपकी हैं उसके ऊपर मैं बैठी और मैंने सोचा कि अच्छा सही है, क्या डिफरेंसेस आए हैं। क्योंकि मुझे किसी ने एक जुमला कसा कि भाई एक जमाना था जब एक बंदा कमाता था और सबको चलाता था और मसला नहीं होता था, ठीक है ना। जिस पे मेरी बहस ये थी कि हाँ ठीक है, ये तब हो सकता था क्योंकि तब जो है पढ़ाई इतनी महंगी नहीं थी, चीजें इतनी महंगी नहीं थी। तो उन्होंने कहा लेकिन कमाई भी उतनी महंगी नहीं थी, ठीक है। अब जहां तक बात आती है हमारे चॉइसेस की सूरत, तो हम एक कंज्यूमरिज्म ड्रिवन हम एक सोसाइटी बन चुके हैं, ये एक सच्चाई है, ठीक है ना। अ, हमारे पास, मैं अभी भी अगर किसी बच्चे के पास बैठती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि सही है तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक्स अमाउंट ऑफ पैसे आते हैं, मैं ये बच्चे की बात कर रही हूँ जो अब पढ़ लिख रहा है, ठीक है ना, जो अब इस चक्की में नहीं बैठा हुआ है कि उसने कमाना है या घर को चलाना है, उसको पॉकेट मनी मिल रही है। अब अगर उसको पॉकेट मनी मिल रही है तो उस पॉकेट मनी में वो क्या करना चाहता है या क्या करना चाहती है। तो मुझे सुन के बहुत हंसी आना शुरू हुई, क्योंकि जब हमें पॉकेट मनी मिलती थी तो हमें ये नहीं कहा जाता था कि इस पॉकेट मनी पे जो है अम्मा अब्बा में से किसी का कंट्रोल होगा, ठीक है। वो ज्यादा नहीं होते थे, वो दिन के शायद 5 रुपए होते थे। Hmm. वो दिन के 5 रुपए मुझे मिलते थे और उससे जा करके मुझे 10:30 बजे लाइन में लग करके अपनी ब्रेक में 15-20 मिनट की मुझे कुछ एक खाना है जो चिप्स और पीना है एक वो मैं कर बोतल लूँ, ठीक है। पेप्सी। आराम से आती थी। तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ तुम्हें कि उस वक्त भी मेरी अम्मी का एक कहना ये होता था दैट सम पार्ट ऑफ योर मनी हैज टू गेट इनटू सेविंग्स, ठीक है। क्योंकि या तो आपको, अगर, क्योंकि मुझे किताबों का बहुत शौक था, अब जब मुझे किताबों का शौक था तो ऑब्वियसली मेरी अम्मा के पास पैसे लिमिटेड थे, 3 बच्चे थे उनके पास। तो उनका कहना यह था या तो लाइब्रेरी जाओ, जो कि मैं जाती थी, मगर लाइब्रेरी पीरियड हफ्ते में एक दफा होता था, तो मुझे एक ही किताब मिल सकती थी वहां से। वो एक किताब तो मेरी एक सिटिंग की कहानी थी, ठीक है ना। उससे मगर मेरी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा थी, ऑनलाइन तो किताबें थी नहीं मेरे पास। तो फिर मेरी अम्मा का कहना यह था पैसे बचाओ, ठीक है, पैसे बचाओ। और तुम समझो कि तुम्हें रेनी डेज के लिए भी पैसे चाहिए। कल को अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कोई जरूरत ऐसी पड़ जाती है तो यू शुड बी एबल टू सस्टेन योर सेल्फ। और मुझे मेरे अंदर सेविंग की आदत वहां से आई,
क्योंकि ट्रेनिंग में क्या था कि आपके पास आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए एक कॉन्वर्जेशन की जाती थी, But ठीक है? Rahila, I would have to आज disagree. मैं बच्चे से बात करती हूँ किसी मेरी कल एक बच्ची से बात हुई है। उसने मुझे कहा कि सही है, मैं जो है कुछ ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। जो भी मेरी कन्वर्सेशन हुई कि तुम क्या करोगी, नहीं करोगी, क्या स्किल सेट है तुम्हारा, हाउ कैन यू सेल दिस दैट व्हाटएवर। मैंने कहा सही है, जब पैसे आएँगे तो क्या करोगी? उसका इमीडिएट जवाब वाज़ अ वेरी कंज्यूमरिज़्म वाला जवाब। मैं अपने लिए बैग खरीदूँगी, कपड़े खरीदूँगी, मेकअप खरीदूँगी, जूते खरीदूँगी एंड आई एम लाइक ओके होल्ड ऑन। इस पूरी कहानी के अंदर तुम पैसे बचा किधर रही हो, इन्वेस्ट किधर कर रही हो, ठीक है? हमारी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, तो इस पे एक्चुअली एक कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी लेकिन है। लेकिन राहिला, ये एक आप एक एक यंग बच्चे की बात कर रहे हैं, इसमें दो हुँ, एस्पेक्ट हैं। अगर ये कंज्यूमरिज्म बेस्ड आंसर आया है, तो अगर वो बैग लोकल खरीदे, मेकअप लोकल खरीदे और चप्पल और कपड़ा लोकल खरीदे, तो ये तो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैं नहीं देख समझती कि वो गलत बात है। नहीं, और दूसरी बात ये है कि मैं जिस क्लास की बात कर रही हूँ, वो 2 लोग हैं। एक मिडल क्लास का वो इंसान जिसने 4 लोगों के साथ अपने घर को चलाना है, जिसमें एक दरमियाने स्कूल की फीस भी आज आसमानों को छू रही है। हुँ, मैं लग्ज़रीज़ की नहीं, बेसिक्स नेसेसिटीज़ की बात कर रही हूँ। आपके यूटिलिटीज़, आपके बिजली के बिल, गैस का बिल आज जिस तरह आता है, ये अफ़ोर्डेबल अब नहीं है, आपने जो इन्फ्लेशन रेट कर दिया है। और वो तबका जो कि ये मैं तैमूर रहमान का पेपर की रिसर्च पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि फ्लड से इस दफ़ा आपका 1/3 एग्रीकल्चरल लैंड इफ़ेक्ट होता है। पूरे एग्रीकल्चरल लैंड का आपका 1/3 लैंड इफेक्ट होता है, $30 बिलियन का नुकसान होता है। और ऐसा मुल्क जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फ्लडिंग होती है, और जो ग्लोबल वार्मिंग इस फ्लड को फैसिलिटेट जिसकी वजह से ये होता है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसका जिम्मेदार ग्लोबल नॉर्थ है, जो कोई बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करते। और उसके बाद आईएमएफ आके हमारे ऊपर ऐसी पॉलिसीज हमें देती है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जाएंगे उन पॉलिसीज हुँ, को इम्प्लीमेंट होने से। वो 1 करोड़ से नीचे लोग जो 2 वक़्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। ये मेकअप, बैग और कपड़े तो हम जैसे प्रिविलेज लोगों की इस्तितात में आते हैं ना, और ये तय कर पाना कि मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करूँगा। और उस पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 1.8% है, जो आपको पता है माशरे के उसी तबके में सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो आप या एक बताएँ कि एक ऐसी इकोनॉमी में लोग कैसे सस्टेन करेंगे कि जब आपकी पॉपुलेशन इस तरह बढ़ी है, इसका मतलब है पर पर्सन आपका जो जीडीपी है वो श्रिंक पे श्रिंक होता जा रहा है। तो ये बात अब मुझे मेरा ख्याल है इससे बहुत आगे निकल चुकी है, एंड आई थिंक वी एज पीपल नीड टू ऑर्गेनाइज या एंड and take control of the policies that are implemented in the country. And I personally believe कि ये जो सोच है ना, ये elite के पास अगर आए, और अगर वो इस चीज में एक्टिव हो कि पॉलिसीज अब इस आप यू आर ऑन द ब्रेकिंग पॉइंट नाउ, एंड यू आर इट्स एक्चुअली बियॉन्ड दैट, क्योंकि 2 वक्त की सही है। रोटी भी अब मुश्किल है। जी, और अच्छा, अब आपका मेरा रेवोल्यूशन अगर तुमसे एक आएगा तो सवाल है। इसी इसी वजह से आएगा ना, सही है। अगर अच्छा, चेंज आएगा तो फिर इसी वजह से आएगा क्योंकि आप बट टू आंसर योर the straw क्वेश्चन that breaks the camel's back. इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, कुरत, एक बात जो हमें एज अ डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन समझना बहुत जरूरी है। मैं मुस्कुराए इसलिए गई हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी पे थोड़ी मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है, ठीक है ना? हुँ, जब आपके पास आपकी गवर्नमेंट में कोई आपका नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, ठीक है ना, वो जिस भी तरह से आया हो, उस इलाके को सर्विस प्रोवाइड करना और उससे रिप्रेजेंट करना उस इलाके को नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में उसका जॉब है, ठीक है ना? आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते भी हैं कि ये मौसूफ या मौसूफा कहाँ बैठती हैं या बैठते हैं? उनसे आई जा मीन करके हाँ, उनका ठीक है, लहू दैट्स फाइन। उनके उन मतलब कितने तो लोग वहां जाके। टैंजेंट टैंजेंट राहिला, टैंजेंट। मैं कुदरत के सर में एक सवाल का जवाब ये देना चाह रही हूँ दैट इफ यू वांट टू काइंड ऑफ गेट इनटू अ कन्वर्सेशन जो कि पॉलिसी लेवल पे हो, तो पॉलिसी लेवल आपके इसी पार्लियामेंट के अंदर चेंज होनी है। और उसमें सिर्फ कॉन्वर्सेशन करने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन उस एक्शन से अब हम मुराद अब आपकी ये हमें है।
एक बहुत ही जज्बाती किस्म की जैसे जंग लोग जो कौन ये करते हैं। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉलिसी चेंज आएगा, पॉलिसी चेंज होने से पहले इन लोगों का चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लोग आज असेंबली में बैठे हुए हैं, ये 70 साल और उससे बियॉन्ड बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं पढ़ रही थी पाकिस्तान मूवमेंट में पंजाब का किरदार, तो उसमें एक मौसूफ का नाम आया जो यूनियनिस्ट पार्टी के सदर थे, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जिसने पीछे कर दिया था। वो जो मौसूफ थे जिन्होंने बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, फिर उनके बेटे भी पॉलिटिशियन बने। ये तो नस्ल दर नस्ल वही लोग हैं जो बिल्कुल फंडामेंटली पाकिस्तान बनने के ही खिलाफ थे, मगर बिल्कुल फिर वो आए और वो उनके बेटे फौज में भी गए, पॉलिटिक्स में भी आए और फिर उनके बच्चे पॉलिटिक्स में आए। तो आपको लगता है कि ये और लोग सिर्फ जो एक पार्टी में नहीं होते हैं, और ये यू नो अब बहनें, एक हम बहन एक तीनों को पार्टी में, एक पॉलिटिक्स में बहन आ दूसरी जाना पार्टी चाहिए में। अब। और आई मीन एक ही इट्स एक ही इजीली खानदान के 3 लोग 3 पार्टीज में होते तीन हैं, तो पार्टीज में चलो होते तो हैं और फिर वो आर्मी में भी होते हैं, तो हर तो सोर्स ऑफ इनका पावर। एजेंडा सिर्फ सेल्फ सर्विंग है। आप इनसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि आवाम के लिए रिलीफ हो। ये सिर्फ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो खुद उनको रिलीफ दे। यस देखो, उसकी वजह यह है कि अगर आज तक आप अपनी आवाम को रोटी कपड़े मकान के ऊपर फंसा के नहीं रखेंगे ना, तो इस आवाम से पढ़ लिख के कोई ना कोई ऊपर आएगा और जो कहेगा कि भैया मैस्टोजाइटी ऑफ नीड में ना रोटी कपड़े और मकान के ऊपर भी चीजें हैं, एंड आफ्टर 78 इयर्स अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना? और आप तो सोशल मीडिया पे अब बात रोटी पकड़ा कपड़ा मकान से सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बफेट एटलांटिस दुबई में होता है और उसके अंदर कितना खाना ये एवरीबडी हैज दिस इंफॉर्मेशन नाउ। एवरीबडी फ्रॉम यस, समबडी लिविंग इन द स्मॉलेस्ट रूरल एरिया हैज दिस इंफॉर्मेशन। तो बात अब रोटी कपड़ा मकान से बहुत आगे है, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं यही और आपको सबको बताना चाह रही हूँ सब कि कुछ मिलना आपको चाहिए। अगर पॉवर्टी लाइन के एक सर्टेन लेवल के नीचे अगर आपको रखा गया है ना, तो आपके अंदर ख्वाहिश पैदा कर दी गई है, ठीक है ना? लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको मीन्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको नहीं अटका के रखा गया, यानी कि तुम मुझसे एक बात कर रही हो आज आज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। हम बात कर रहे हैं बॉयकॉट के ऊपर, हम बात कर रहे हैं लोकल इकोनॉमी के ऊपर, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, जिसपे हमने कहा कि सही है यहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस वजह से अगर वो केएफसी में काम करते हैं या मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। मगर सच ये है कि अगर उसने फीस देनी है, ठीक है, उसने बिजली का बिल देना है, तो वो पलट के कहेगा कि बॉयकॉट और नो बॉयकॉट, तुम आके मेरे घर पे जो है खाना राशन डाल सकते हो? नहीं डाल बिल्कुल। सकते, नहीं डाल सकते तुम ये, ठीक है ना? मैं इस वक्त फलस्तीन के लिए किस तरह लड़ूं जबकि मेरे अपने घर के अंदर खाने के वांदे पड़े हुए हैं, ठीक? क्योंकि ये एक सच्चाई है, ये आपकी पॉलिटिकल सिस्टम की एक सच्चाई है, ठीक है? मगर क्या आपका यही तबका वो है कुतुलैन जो कि केएफसी अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो हमारी कॉन्वर्जेशन उन लोगों के लिए है जो कि केएफसी खाना अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है? मैं अगर आज अपने ऑफिस के कैफेटेरिया के अंदर बैठती हूँ ना, तो उस कैफेटेरिया के अंदर अक्सर बच्चे वो हैं जो सिर्फ जुम्मे वाले दिन बाहर से खाना मंगवाते हैं, और वो खाना क्या होता है? 200 या 250 रुपए की बिरयानी। जब मेरे पास जुम्मे वाले दिन कभी ऐसा होता है कि मैं नीचे से 400 रुपए का टिक्का मंगवाती हूँ, तो मुझे इतना छेड़ते हैं लोग कि ये आ गए अमीर लोग जो 400 रुपए का टिक्का खा गए, ठीक है? हंसो मत, हाँ, लेकिन ये सच है। आम बच्चा तुम्हारा जो है वो बिरयानी जो आएगी ना उसके पास, वो उसके ऊपर खुश हो जाएगा। हम ये कॉन्वर्सेशन उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि उसी कैफेटेरिया में बैठकर हर दूसरे तीसरे दिन केएफसी खा रहे हैं। वो हर दूसरे तीसरे दिन बैठ करके मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है क्या ना? जिनका कहना ये है कि मैं डोमिनोज का पिज्जा इसीलिए खाना चाहता हूँ क्योंकि ब्रॉडवे रबिश है। अच्छा, ब्रॉडवे क्यों रबिश है? मतलब एंड देयर आर अदर लोग, अगर आपको ब्रॉडवे रबिश लग भी रहा है, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड ऑप्शंस एज वेल, पिक एंड चूज। लोकल ऑप्शन। एग्जैक्टली माय पॉइंट। या यू तो डोंट ये हैव टू गो टू हमारी डोमिनोज, पिज्जा हट तो बहुत एग्जैक्टली अच्छी बात है कि वो खत्म हो गया है। अब मैकडॉनल्ड्स लाहौर में आ गया केएफसी कब वापस। खत्म हो जाए? नहीं यार, पिज्जा हट इज बैक इन लाहौर। आय हाय, तो क्या कर सकते हैं हम इन चीजों का? हमारी जो ये कॉन्वर्जेशन है ना, वो एक्चुअली हमारी ये प्रिविलेज क्लास के लिए ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों की अफोर्डेबिलिटी इन्हीं लोगों के लिए है। और अगर हमें कहीं ना कहीं अपना रोल तो प्ले कर, मैं इस वक्त नेशनल असेंबली में जाकर के लड़ाई नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं नेशनल असेंबली की मेंबर नहीं हूँ। मैं प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जाके लड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ। लेकिन मेरे हाथ में क्या कंट्रोल है? मेरे हाथ में कंट्रोल है कि जो मैं चॉइसेस कर रही हूँ इकोनॉमिकली,
वो चॉइसेस मेरी वो हो जो कि कॉन्शियस चॉइसेस हो और And मैं in fact, कॉन्वर्सेशन कर सकूं. yeah, you see the point would be कि देखें आप, हमने पिछले इलेक्शन में तो देख लिया है कि हमारे वोट से कुछ नहीं होने वाला है. हम जो जो नंबर्स रात में सो के हमने देख के कहा, oh my god, great, our candidate won. We woke up the next morning and they switched the numbers. I mean, we do not have control as far as democracy is concerned. There is no democracy in Pakistan. हम कभी नहीं थी. They can control everything as far as that's concerned, and they will give us the same and the same leaders will come on top that will benefit the United States and nobody else at the end of the day. That's the only thing that they're looking for. So we do have power economically. We do have power as community. We do have power with our boycotts. And we really need Pakistanis to recognize कि आपके पास वो वाला power नहीं है, आपके पास ये power है, लेकिन आपको बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है. आपको अपनी जिंदगी से, स्पेशली वो लोग जिनके पास थोड़ी सी गुंजाइश है जिंदगी में, आपके पास अगर आप KFC जा सकते हैं, इसका मतलब आपके पास पैसे इतने हैं कि आपके पास गुंजाइश है. बेसिकली आप मुस्तकिल रोटी के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप मुस्तकिल पेट भरने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप उसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं. तो वो लोग, उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, which would be the upper middle class, basically small contingent, small percentage of this population, but they are the ones who will bring change. They are always the ones who bring change in any. Because they have the money, They have the spare money to intellect. bring that change. They have the Yes. intellect and the spare money. And those are the Yeah. people. And I don't care what your religious affiliation is. I don't care how you live your life. I only care about how it affects this country, how your actions affect this country. And those are the people that I think need to change. बट एक ये तो बायकॉट पे बात हो गई. बायकॉट तो पूरी तरह आपके इख्तियार में है, आप पूरे अपना इख्तियार पैसा में, कहाँ बिल्कुल. खर्च करते हैं. लेकिन सैंक्शंस के बारे में जो है, कि देखिए, ऐसी पॉलिसी हो जो कि लोकल इंडस्ट्री को फायदा दे. so yes, but I mean, we could do that as well, right? A community can do that. They can say it's sanctions, yani hum log, you go to a local supplier of raw materials and say, do not sell your chickens to KFC. Let KFC figure out somewhere else to get them. Let them import it, because then इनका margin कम हो जाएगा. अगर उनको import करना पड़ेगा, उनके दिमाग में थोड़े से कीड़े आ जाएंगे जब उनको customs के साथ मुस्तकिल डील करना पड़ेगा, उनको bribes देने पड़ेंगे, जो कुछ भी करना पड़ेगा. So sanctions is something that can be done. It's not impossible to do. Again, it's a matter of organizing and spending your time on You know, something. now that अगर आप history को पढ़ें, so the elites are never inclined towards the Never. change. It is the masses, and when Of they course. move towards a cause in good volume, elites are forced to join them because that becomes the trend of the society. Absolutely. तो अगर मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि elites are not disturbed by the कर्ज, जैसे आपने कहा कि वो तो चाहते हैं कि नून लीग आए और IMF से कर्ज आए और उनका काम आसान हो, उनके मिलियन बिलियन बने और उनके बिल्कुल. बिलियन मल्टी बिलियन बने. सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी elite की ये सोच है, तो if the masses gather in enough numbers, then Yeah. even this way of thinking can be changed. क्योंकि मैं सिंपल मैथ बताती हूँ तुम्हें. देखो, आपकी जो एलीट है, जो कि बिजनेस क्लास है, ठीक है, या बिजनेस कम्युनिटी है, वो बिजनेस कम्युनिटी बैठ करके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, वो एग्रीकल्चर भी कर रही है. बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है. लेकिन अगर उनका सामान खरीदने वाला ना हो, उनका बिजनेस कैसे चलेगा? ठीक है. और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे अगर मेरे पास खरीदार नहीं बच रहा है, तो मेरा बिजनेस बैठेगा ना. रेवोल्यूशन इस तरह से आता है. आज अगर आप एक सर्टेन कंपनी से को देखते हैं जो कि चीजें इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, सही है, उसका बिजनेस है, वो इंपोर्ट कर रही है. अब उसका बिजनेस जो है वो बात ये कर रहा है कि जी मैंने फॉर एग्जांपल बाहर से चॉकलेट मंगवानी है, ठीक है. अब हम एक डिबेट में आ सकते हैं कि जी चॉकलेट की क्वालिटी जो बाहर से आ गई है वो बेहतरीन है, जो पाकिस्तान में बन रही है वो इतनी अच्छी नहीं है. हम
दो लेवल्स के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। हम पहले लेवल पे लड़ाई ये कर रहे हैं कि आप जाएं और आप जाके कहें चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स इन दिस कंट्री, चाहे वो मिचेल्स हो, कैंडीलैंड हो या जो कोई भी हो, कि हम इस क्वालिटी की चॉकलेट नहीं खाना चाहते हैं, क्वालिटी को बेहतर करें आप, ठीक है ना। आप थोड़े से भी पैसे अगर इसके बढ़ाते हैं और क्वालिटी बेहतर कर देते हैं, इट इज स्टिल गोइंग टू बी चीपर देन इंपोर्टिंग व्हाट यू इंपोर्ट, ठीक है, अग्रीड। अब जब आपको ये नजर आ गया कि ये मेरे पास कंज्यूमेबल आइटम जो है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास सबसे बड़ा बिजनेस जो चलता है वो टेक्नोलॉजी का चलता है, दूसरा चलता है कंज्यूमेबल आइटम्स का, ठीक है। इन चीजों के ऊपर तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपके पास एक एक्सपायरी है, क्योंकि चेंज होती रहती है टेक्नोलॉजी, और कंज्यूमेबल जो है आपका वो तो आता ही एक्सपायरी डेट के साथ है, ठीक है। तुमने अगर डिसाइड कर लिया कि हम नहीं लेंगे, एज अ कम्युनिटी हम ये नहीं ले गए, आप लोकल लोगों से कहें क्वालिटी बेहतर करें, बेशक थोड़े पैसे बढ़ा दें, मगर इंपोर्ट नहीं होगा सामान, तुम्हारी क्वालिटी बेहतर होगी, मजबूर हो जाएगा तुम्हारा ये इलीट। आपने क्या कहा, इम्पोर्ट नहीं होगा सामान, अगेन वहाँ पॉलिसी आ जाती है, ये Policy हमारे इख्तियार में नहीं उसके है कि हमारे import इख्तियार में नहीं है। होगा। देखो मेरी ये बात सुनो, डिसीजन आपकी गवर्नमेंट लेती है, पॉलिसी क्या इंपोर्ट होगा क्या नहीं अग्री, होगा। पॉलिसी चेंज नहीं हुई, मगर एज अ कम्युनिटी आपने डिसाइड किया हम खरीदेंगे ही नहीं ना। खरीदेंगे नहीं, जब आप कह गए आप खरीदेंगे ही तो नहीं, तो फिर उसका आपकी कंज्यूमर कहाँ बिल्कुल गया? Absolutely. तुम्हारा But that's a कंज्यूमर power in our hand and that's something that we ourselves don't ये do. आइडेंटिफाई करवाने की मैं कोशिश Yeah. कर रही हूँ कि तुम समझो कि वो इलीट भी इलीट इसीलिए है क्योंकि वो पैसे कमा पा रहा है उस कंज्यूमर से जो कि जिसको वो अपना सामान या सर्विस बेच रहा है। बिल्कुल उस कंज्यूमर ने कह दिया कि अगर तुम लोकल बनाओगे तो मैं खरीदूंगा, वरना तुम बैठे रहो, मैं नहीं खरीद रहा। अब किसको बेचेगा? बिल्कुल एक्सपोर्ट करेगा तो अच्छा है, मुल्क में पैसा आएगा। बनाए मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान में नहीं बेच सकता, बाहर बेचे, ठीक है, क्योंकि आपके लोकल लोगों ने मना कर दिया हम नहीं खरीदेंगे। मगर उसके लिए आपको जान मार के कुछ अरसे तक वो मिचेल्स कैंडीलैंड की चॉकलेट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और वो हम करने को तैयार नहीं है। कोला नेक्स्ट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। Oh my God, मेरे पास पता नहीं कौन आया हम था, सिरका like, oh my बर्दाश्त God, करने it को sounds तैयार नहीं है। तुम मुझसे कह रही हो कि एप्पल साइडर विनेगर जो है अगर वो मिचेल्स Sidra, का है तो वो गंदा है, oh और no, अगर it's वो so brilliant though. XYZ बाहर से आ रहा है तो वही अच्छा है। वो केमिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? और अफसोस की बात तो ये है कि पीपल एसोसिएट देयर सेल्फ एस्टीम विद दीज फॉरेन ब्रांड्स। ओ हम तो अमेरिकन प्रॉब्लम इसका गार्डन है। की सॉसेस यूज करते हैं हम, कोला नेक्स्ट वी डोंट ड्रिंक दिस, इट्स सो यू ये वाली जो मेंटालिटी है ना, CBTL चल रही हो, you know what is Oh my CBTL? God, no, I have no idea what is What's that. CBTL? Tell me. Coffee bean and tea. Oh, Yes. So you know वहाँ पियेंगे तो बहुत अच्छी कॉफी है, एंड अगर लोकल ड्रॉप में पी लें तो इट्स नॉट, चलो खैर वो भी चलता है। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे द लोकल कॉफी वेंडर्स आर फ्लरिशिंग, लेकिन आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, आप फॉरेन चीजों में, आप टिम हॉर्टन्स की स्टोरी डालते हैं जाके, आप कॉफी वगैरह की स्टोरी नहीं डालते, आप फॉरेन टिम हॉर्टन्स की स्टोरी डालते सही हैं। है। तो अब हमें मसलन थोड़ा यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा conclusion सा। करना पड़ेगा. Yes, I think we need to actually wrap up right now. We have 3 minutes. मगर ठीक है। मेरा इस कॉन्वर्जेशन से मुझे तो यही लगता है कि असल सही तब्दीली आने के लिए आपके माशरे के ऊंचे तबके को जो ज्यादा टैक्स पे करता है, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो अपना एक साथ हो के पॉलिसी रिफॉर्म्स हम पे लोग काम करें, हम लोग हम लोगों को हम लोग we are the people that need to be targeted. Yep. It needs to be our And family and it friends. will always be driven by the consumer. खरीदने वाला नहीं होगा Yeah. तो बेचने वाला मजबूर होगा वो करने के लिए जो खरीदने वाला चाहता है, ठीक है। तुम्हारी पूरी फैशन इंडस्ट्री अचानक से वो अजीब किस्म के फैशन पे इसीलिए आ जाते हैं कि तुम्हारा कंज्यूमर खड़ा होकर कह रहा है मुझे ये चाहिए, ठीक है। ये बात ये समझने वाली बात है। दैट इज द पावर, ठीक है। हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे सबाहत ने कहा कि शौकत अजीज मेड सर्टेन चेंजेस व्हिच ऑलमोस्ट गॉट अस आउट ऑफ द Out of IMF IMF. ट्रैप। Yeah. तो वो मैंने और आपने तो नहीं किया था ना, वो ऊपर बैठे हुए हाँ, पॉलिसी लेकिन मेकर्स we can't, my point would be कि हम लोग, we can't wait for another shock disease to show up, right? We can't constantly hope. अब मुसल्ले पे बैठ के चिल्ला तो इंशाल्लाह काट नहीं कोई सकते हम आएगा, कि आ जाए। इंशाल्लाह आएगा हमारा भी, लेकिन हमको अपनी तरफ जब तक वो नहीं आएगा, जब तक हम लोगों को भी
हम लोग और बैठ अवेयरनेस इज awareness raise सुपर करना है। इम्पोर्टेंट। Yeah. और मेरा ख्याल है, आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू बाय द को-फाउंडर ऑफ पीडीएस एंड ही सेड कि जब हम स्कूल में जाके बात करते हैं तो पेरेंट्स हमारे पास आके कहते हैं कि आपने हमारे बच्चों के साथ किया क्या है, वो हमारी ग्रोसरी का एक-एक आइटम चेक करते हैं हम। सो जी। अवेयरनेस इज सुप्रीमली Very इम्पोर्टेंट। important. अगर एक Yes. मासेस And को at the अवेयरनेस school level, and at the school एब्सोल्युटली level, Absolutely. Rasulan, at the school level, क्योंकि बच्चे जितने अमेजिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, मेरे घर में जैसे ही मेरे स्कूल ने कहा था ना कि जी आप कचरा जो है वो कूड़ेदान से बाहर नहीं फेंक सकते, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हाथ, हम सब टेररिस्ट बन गए थे अपनी गाड़ी के अंदर क्योंकि हम किसी को गाड़ी से बाहर कचरा फेंकने Yeah. नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? बिल्कुल। And that's something ये बात also that और I would like enforced. But I think we have to run now, and I want to actually talk about this a little further because I think we need to take the names of local brands or local companies that are doing so well. let's do that. Things. Let's do that as in part 2. Yeah, Okay. let's do that in part 2. Thank you for watching. If you enjoyed our ramblings, please like, subscribe, comment, and share. We're three unlikely friends, Sabahat Qadri, Qurratulan Maqbool, and Rahila Ashraf. This was Kabir. Disclaimer. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are solely those of the individual participants and do not represent or reflect the views of any organization, institution, employer, or affiliated entity, nor do they endorse any religious, ethnic, political, economic, or social group, belief, or ideology. Nothing discussed in this podcast should be considered professional, legal, medical, or financial advice. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding the completeness or reliability of the information presented. The creators of this podcast disclaim any and all liability for any actions taken or not taken based on the content of this podcast. By listening to this podcast, you acknowledge and agree to the terms of this disclaimer.